Ladies and gentlemen, we congratulate Mr. Peter Thompson on his election as President of the 71st session of the General Assembly. We agree that implementation of the Sustainable Development Agenda should be the focus of this session. We also pay tribute to Mr. Liketoft for his capable stewardship of the 70. Mr. President, today, 3 decades after the end of the Cold War, our multipolar world is more free and vibrant, yet still chaotic and turbulent, more interdependent, but more unequal, more prosperous, yet still afflicted with poverty. We see spectacular progress, but also unprecedented human suffering. The world is at a historic inflection point. The international order established after the Second World War is passing away, but a new order has yet to emerge. Competition between the major powers is becoming more confrontational. This can pose serious threats to peace across Asia. A new Cold War threatens to engulf Europe. The momentum there towards greater union has already reversed. Barricades and walls are going up, especially against the tide of misery flowing out of a turbulent Middle East. In many countries, intolerance has revived the ghost of xenophobia and Islamophobia. Turmoil is intensifying in the Middle East. International efforts to defeat Daesh are therefore urgent. For this, it is essential to reconcile the divergent objectives and priorities of regional and external powers. Peace cannot be built when injustice prevails. The long festering tragedy of Palestine demands determined action by the international community. Mr. President, after decades of strong growth, the world economy has reached a plateau. Despite this adverse international economic environment, my government has in the last three years moved the country towards robust growth. We have fully integrated the 2030 Development Agenda into our own economic and social strategy. This rests on our conviction that people are the true wealth of our nation and that it is human development which will determine our future destiny. Mr. President, our priority goal of economic development requires internal peace and stability. My country has been the principal victim of terrorism, including that supported, sponsored, and financed from abroad. We will not allow externally sponsored terrorism and threats of destabilization to cause turbulence in Pakistan. Tens of thousands of our citizens and thousands of our security personnel have been killed or injured in terrorist attacks. This has only reinforced our resolve to eliminate the scourge of terrorism. Our comprehensive strategy of law enforcement and targeted military operations has produced remarkable results and enabled Pakistan to turn the tide against terrorists. Pakistan's Zarbayaz operation is the largest, most robust, and most successful anti-terrorism campaign anywhere in the world, deploying 200,000 of our security forces. Our comprehensive national action plan has the complete endorsement of our people and our parliament, as well as our security forces,
all of whom have made heroic sacrifices to defeat terrorism. Mr. President, terrorism, however, is now a global phenomenon which must be addressed comprehensively and in all its forms, including state terrorism. The international community must coordinate its efforts to accomplish this. These efforts should be taken collectively and not unilaterally by the passage of any laws with extraterritorial application targeted against certain countries. We will not win the fight against terrorism and violent extremism so long as we do not address their root causes. These lie in poverty and ignorance, political and social injustice and oppression, foreign intervention and occupation, and denial of the legitimate rights of the people and nations, especially the right to self-determination. Until these underlying causes are addressed, it will be difficult to counter the twisted narrative of violent extremists and terrorists. Mr. President, after 15 years of the current war in Afghanistan, the international community agrees that the only road to a lasting peace in that country is through a dialogue between the government in Kabul and the Afghan Taliban. Pakistan has long proposed this as the most viable course to end decades of conflict and suffering in Afghanistan. Based on this belief in a negotiated peace and in response to requests from President Ashraf Ghani, we have been facilitating the process of reconciliation in Afghanistan. There have been setbacks. That, however, is not a sufficient reason to abandon the path of peace and rely on the military option, which has failed for the past decade and a half to stabilize Afghanistan. Progress will be assured only when the Afghan parties themselves conclude that there is no military solution to the Afghan war and work assiduously through a meaningful dialogue process for achieving reconciliation and peace at home. Mr. President, over 3.5 decades of conflict and chaos in Afghanistan has had grave security and economic consequences for Pakistan. Almost 3 million Afghan refugees to whom we opened our homes and hearts remain in Pakistan. We hope to see them return to Afghanistan voluntarily and with dignity. Until they do, the international community must shoulder its responsibilities to sustain them. Mr. President, confrontation should not be our destiny in South Asia. Pakistan wants peace with India. We have gone the extra mile to achieve this, repeatedly offering a dialogue to address all outstanding issues. But India has posed unacceptable preconditions to engage in a dialogue. Let us be clear. Talks are no favor to Pakistan. Talks are in the interest of both countries. They are essential to resolve our differences, especially in Jammu and Kashmir dispute, and to avert the danger of any escalation. Mr. President, peace and normalization between Pakistan and India cannot be achieved without a resolution of the Kashmir dispute. This is an objective evaluation, not a partisan position. Our predictions have now been confirmed by events. A new generation of Kashmiris has risen spontaneously against India's illegal occupation, demanding freedom from occupation. Burhan Wani, the young leader murdered by Indian forces, has emerged as a symbol of the latest Kashmiri Intifada, a popular and peaceful freedom movement led by Kashmiris, young and old,
men and women armed only with an undying faith in the legitimacy of their cause and a hunger for freedom in their hearts. Mr. President, this indigenous uprising of the Kashmiris have been met as usual with brutal repression by India's occupation force of over 500,000 soldiers. Over 100 Kashmiris have been killed, hundreds, including children and infants, blinded by shotgun pellets, and over 6,000 unarmed civilians injured over the past 2 months. These Indian brutalities are well documented. I would like to inform the General Assembly that Pakistan will share with the Secretary General a dossier containing detailed information and evidence of the gross and systematic violations of human rights committed by Indian forces in occupied Jammu and Kashmir. These brutalities will not suppress the spirit of the Kashmiris. It will only intensify their anger and fortify their determination to see India end its occupation of Kashmir. From Srinagar to Sopur, the men, women, and children come out each day, defying curfew to demand freedom. Mr. President, Pakistan fully supports the demand of the Kashmiri people for self-determination as promised to them by several Security Council resolutions. Their struggle is a legitimate one for liberation from alien occupation. International law and declarations of the United Nations on self-determination give the Kashmiri people the right to struggle for their freedom. Every year, the General Assembly unanimously adopts the resolution which reaffirms the right of all peoples to self-determination and calls on the states concerned to immediately end their occupation and all acts of repression. Mr. President, on behalf of the Kashmiri people, on behalf of the mothers, wives, sisters, and fathers of the innocent Kashmiri children, women and men who have been killed, blinded, and injured, on behalf of the Pakistani nation, I demand an independent inquiry into the extrajudicial killings and a UN fact-finding mission to investigate brutalities perpetrated by the Indian occupying forces so that those guilty of these atrocities are punished. We demand the immediate release of all Kashmiri political prisoners, an end to the curfew, freedom for the Kashmiris to demonstrate peacefully, urgent medical help for the injured, and abrogation of India's draconian laws. Mr. President, the Security Council has called for the exercise of the right to self-determination by the people of Jammu and Kashmir through a free and fair plebiscite held under United Nations auspices. The people of Kashmir have waited 70 years for implementation of this promise. The Security Council must honor its commitments by implementing its own decisions. This General Assembly must demand that India deliver on the commitments its leaders solemnly made on many occasions. To this end, steps should be taken by the United Nations to demilitarize Jammu and Kashmir and undertake consultations with India, Pakistan, and the true representatives of the Kashmiri people to implement the resolutions of the Security Council. In this context, we welcome the offer of the good offices by Secretary General Ban Ki-moon. We will also open consultations with members of the Security Council to explore the modalities for implementation
of the Security Council resolutions on Kashmir. Mr. President, the international community ignores the danger of rising tensions in South Asia at its own peril. For its part, Pakistan is committed to the establishment of strategic stability in the region. It neither wants nor is it engaged in an arms race with India. But we cannot ignore our neighbors' unprecedented arms buildup and will take whatever measures are necessary to maintain credible deterrence. We have consistently urged the conclusion of bilateral arms control and disarmament measures between Pakistan and India to prevent conflict and avoid wasteful military expenditure. We are open to discussing all measures of restraint and responsibility with India in any forum or format and without any conditions. We are ready for talks to agree on a bilateral nuclear test ban treaty. Today, from this rostrum, I would also like to reiterate our offer to India to enter into a serious and sustained dialogue for the peaceful resolution of all outstanding disputes, especially Jammu and Kashmir. Mr. President, as a responsible nuclear weapon state, Pakistan will continue to cooperate with all international efforts that seek to promote fair and equitable solutions to disarmament and non-proliferation challenges. We have introduced state-of-the-art measures to strengthen the safety and security of our nuclear materials and facilities. We have adopted a comprehensive export control regime that is fully consistent with international standards. Judged on the basis of objective criteria and without discrimination, Pakistan is fully eligible for membership of the Nuclear Suppliers Group. Mr. President, in our turbulent and interdependent world, the United Nations remains an indispensable organization to restore order and ensure global peace, stability, and prosperity. Its principles remain the crucial pillars of international legality, the guide for the conduct of member states, and the guarantor of the legitimate rights of all nations and peoples. The United Nations must regain its credibility as a central instrument for the promotion of peace, prosperity, and liberty. To that end, it should become more representative, transparent, and accountable. A comprehensive and democratic reform of the Security Council, which Pakistan supports, should enhance its relevance and representation. Creating new centers of privilege will do the opposite. Mr. President, Pakistan's unwavering commitment to the UN is well established. We have played a pioneering and consistent role in UN peacekeeping, and despite our own security requirements, we will remain one of the world's largest troop contributing countries and maintain our record of success in multiple UN peacekeeping operations. Mr. President, Pakistan has a vital stake in ending conflicts, fostering peace, fighting terrorism, strengthening democracy, promoting human rights, generating global growth, and overcoming the challenges of environmental degradation. We can achieve these goals and create a new and peaceful world order only through the United Nations and by strict adherence to the principles of its charter. I thank you, Mr. President. On behalf of the General Assembly, I wish to thank the Prime Minister of the Islamic Republic of पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने न सिर्फ कश्मीर का राग छिड़ा है बल्कि अपने 16 मिनट के भाषण में 8 मिनट तक सिर्फ और सिर्फ कश्मीर का जिक्र किया है। 4 मिनट तक जो संकेत भारत के संबंधों को लेकर दिए हैं वो युद्ध की तरफ बढ़ते हुए कदम की दिशा में भी हैं।
लगभग 19 मिनट के भाषण में 8 मिनट सिर्फ कश्मीर के मद्देनजर कश्मीर के हालात का जिक्र करके पाकिस्तान ने खुद को कश्मीरियों के सबसे नजदीक खड़ा करने की कोशिश की है। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि युद्ध के खतरे के संकेत पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के भाषण में बहुत साफ सुनाई दे रहे थे, खासतौर से हथियारों को लेकर जिस तरीके से होड़ है और उसके मद्देनजर कहीं ना कहीं परमाणु युद्ध की दिशा में भी कदम बढ़ सकते हैं, इसके संकेत दिए गए दोनों देशों के मद्देनजर। इसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने खुद को एनएसजी की सदस्यता के साथ खड़े होने की दिशा में मांग भी की। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अपने भाषण का समूचा हिस्सा कश्मीर के इर्द गिर्द ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने रखा और इस भाषण के मद्देनजर उन्होंने हर उस बात का जिक्र किया जो भारत की संप्रभुता पर सीधे हमला है, क्योंकि भारत जिसे आतंकवादी मानता है उसका जिक्र करके पाकिस्तान ने इस बात को जताना चाहा कि दरअसल वो आतंकवादी नहीं है। पाकिस्तान ने इस दिशा में कदम बढ़ाना चाहा कि कश्मीर के हालात भारत के हाथ से निकल रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से जांच की मांग की, कई सवाल इसके बाद खड़े होते हैं। हमारे साथ तमाम राजनीतिक दलों के मेहमान भी मौजूद हैं और विशेषज्ञ भी मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है, शहनवाज जी बीजेपी के आप नेता हैं, क्या रुख है शहनवाज जी इस भाषण को सुनने के बाद? ये पूरी तरह बेतुका बेहुदा बयान है कश्मीर पर। नवाज शरीफ का कश्मीर का राग अलापना ये पाकिस्तान की पुरानी आदत है। वो एक डरे सहमे प्रधानमंत्री की गुहार है यूएन जनरल असेंबली के सामने, और जहां हमारे 17 सैनिक शहीद हुए उसका एक बार भी जिक्र नहीं करके पहले जब पठानकोट पे हमला हुआ तो दुख जताया, और उसके बाद जब उरी के अंदर हमला हुआ हमारे जवान शहीद हुए, न पाकिस्तान ने दुख जताया न आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने उसका जिक्र किया। केसी सिंह साहब, पाकिस्तान बुरहान वानी को ना आतंकवादी मान रहा है और ना ही कश्मीर के मद्देनजर जिस बात का वो जिक्र कर रहा है वो उसको अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म के साथ साथ अब संयुक्त राष्ट्र को दखल देने के लिए भी कह रहा है। केसी सिंह साहब, क्या प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, इसमें कुछ नई चीजें हैं, कुछ पुरानी चीजें हैं। जो कश्मीर में हालात देखते हुए उनको ये लगता है कि उनको दोबारा से एक मौका मिल गया पुरानी चीजें उठाने का। अब सिक्योरिटी काउंसिल की वो रेजोल्यूशन की बात करते हैं, सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करते हैं, उसकी सबसे पहली कंडीशन ये थी कि पाकिस्तान अपनी फौज वापस लेगी। ये सरासर झूठ बोल रहे हैं कि डीमिलिटराइज किया जाएगा, ये तो रेजोल्यूशन कहती नहीं। उसमें है कि पाकिस्तान अपनी फौज वापस लेगी, हिंदुस्तान अपनी फौज कम करेगी। 1948 की जो रेजोल्यूशन है, उसके बाद हिंदुस्तान ऐसी कंडीशंस बनाएगा जिसमें कि प्लेबिसाइट हो सके। लेकिन प्लेबिसाइट में तो कोई फ्रीडम की ऑप्शन नहीं है। प्लेबिसाइट कहता है आपने हिंदुस्तान में जाना है या पाकिस्तान में जाना। ये आजादी कहां से आ गई? आजादी तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन। तो इन्होंने कुछ सच, कुछ झूठ, कुछ ऐसा जो कश्मीर में अच्छा लगे और भड़काए, वो चीजों को इकट्ठा करके और टेररिज्म को एक फ्रीडम स्ट्रगल की दिशा देके यूएन के आगे खड़ा कर रहे हैं। लेकिन इसको सब जानते हैं, वहां समझते हैं। आपने देखा होगा खाली पड़ा था हॉल, क्योंकि लंच से पहले ये बोल रहे हैं, डिले हो गया, कोई 2 बजे हुए हैं वहां के। ज्यादा स्टाफर थे जो नोट लिख रहे थे, कोई बड़ा नेता नहीं बैठा था। तो इसलिए ये भाषण उन कश्मीर वैली के लिए और पाकिस्तान के लिए है। यूएनजीए में इसका कोई खास असर नहीं। जीडी बख्शी साहब, ये पहला मौका नहीं है कि कश्मीर का राग पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन के भीतर अपनाया है, लेकिन ये पहला मौका है जीडी बख्शी साहब जब वो संकेत दे रहे हैं कि हथियारों की होड़ शुरू हो गई है। वो मेरे से पूछते तो है नहीं यार। जीडी बख्शी साहब, आवाज आ रही है हमारी? प्रेरणा, जो लोग मौजूद थे हॉल के भीतर, जो सुन रहे थे नवाज शरीफ का भाषण, क्योंकि पिछली बार भी कश्मीर का राग था, लेकिन इस बार उसमें एक नया हिस्सा यह था जो युद्ध के संकेत भी दे रहा था और परमाणु हथियारों से युक्त है पाकिस्तान, इसको एक तरीके से चेता भी रहा था, बता भी रहा था। क्या मैसेज है वहां पर प्रेरणा? जी, जैसा कि अपेक्षा थी नवाज शरीफ जी से वैसा ही हुआ। अपने कुछ 15 मिनट के भाषण में उन्होंने 8 से 9 मिनट कश्मीर को लेकर और भारत को लेकर बात की। इससे एक बात तो साफ है कि वो
एक बायलैटरल रेजोल्यूशन जिसकी बात काफी देर से करते आ रहे हैं, वो शायद उतना नहीं चाहते, काफी दूसरे देशों का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं। उन्होंने बात की बुरहान वानी एनकाउंटर की, उन्होंने बात की कि डायलॉग से बात हो सकती है, उन्होंने बात की कश्मीर को सेल्फ डिटर्मिनेशन का एक राइट है। तो ये सब जो भी बातें हैं वो इंडिया सेंट्रिक है, पर उन्होंने अपनी ये सब बातें पाकिस्तान के जनरल असेंबली एड्रेस में कही। तो इतना तो जैसे उन्होंने भी कहा है कि कश्मीर को के अलावा भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई रेजोल्यूशन की बात हो नहीं सकती है, और उन्होंने इतना साफ साफ कह दिया है। ओके, कश्मीर के जीडी बख्शी साहब, हमारी आवाज अब तक आ रही है? जीडी बख्शी साहब, आवाज आ रही है अब तक? हाँ जीडी बख्शी आ रही है, बताइए। जी, जो कश्मीर का राग था वो पाकिस्तान ने फिर गाया है, लेकिन हथियारों की होड़, युद्ध के खतरे के संकेत, परमाणु युद्ध से युक्त दोनों देश, इन सारे बातों का जिक्र का मतलब क्या है? नहीं लगता है जेडी बख्शी साहब के पास आवाज फिर नहीं जा रही है। आरपीएन सिंह साहब, राजनीतिक तौर पर अब इसे किस रूप में देखा जाए जब पाकिस्तान का रुख कश्मीर में दखल सीधे देने का है? Are you asking me, please? Please, thank you. Arnab, what I am trying to... आरपीएन सिंह साहब। हाँ प्रसून जी, हमने एक बार फिर देखा कि किस तरह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने देश के सामने फिर से झूठ बोला है, दुनिया के सामने किस तरह झूठ बोला है। जो भी चीजें उन्होंने कहा पूरी देश और दुनिया जानती है कि इसमें एक भी आना सच्चाई नहीं है। पिछले कई वर्षों से हमने जो परसेप्शन दुनिया में बनाया है कि पूरा विश्व जान गया है कि अगर आतंकवाद कहीं पनपता है, आतंकवाद को कहीं श्रेय दिया जाता है, वो पाकिस्तान है। ये जो डिप्लोमेटिक हमारी सरकारों ने विदेश में दिखाया कि किस तरह डॉसियर्स देके आज पूरा दुनिया जानता है कि आतंकवादी का अगर कोई देश है, आतंकवाद कहीं पनपता है। और मैं समझ सकता हूं जो भी आज प्रधानमंत्री पाकिस्तान ने कहा, पूरा विश्व जानता है कि वो उसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। और मैं समझ सकता हूं ये जो हमारी विदेश नीति रही है, उनका एक खुलासा करना जो हमारे सरकारों में हुआ, वो स्पष्ट रूप से जो परसेप्शन था पाकिस्तान के बारे में, प्रधानमंत्री कुछ भी कहें, पूरा विश्व जानता है कि क्या सच्चाई है और क्या सच है। केसी सिंह साहब, आप कह रहे हैं झूठ सच को मिला के कहीं परोसने की एक कोशिश की गई, लेकिन सवाल है अब भारत को क्या करना चाहिए? केसी सिंह साहब। देखिए, भारत ने बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि फोकस जो ये ह्यूमन राइट्स पे लाना चाहते थे कश्मीर वैली के बारे में, वो फोकस उरी अटैक के बाद टेरर की तरफ चला गया है। और इनसे 4 स्पीकर पहले अफगानिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट बोले हैं, उन्होंने भी ये इन पे इल्जाम लगाया है कि आपने तालिबान पे एक्शन नहीं लिया, आप उनको कंट्रोल नहीं करते। और ये वहां पे खड़े होकर कह रहे हैं कि तालिबान के साथ बात करें और बातचीत से बात सुलझेगी, ये लड़ाई से नहीं सुलझेगी। तो इस दो पखा इनका जो रुख है वो ये बोलते जाएंगे अफगानिस्तान पे भी और सारी चीजों पे। तो इस टाइम ये बैकफुट पे थे, क्योंकि फोकस देखिए, जो अफगान जिसने न्यूयॉर्क में बम फोड़ा है, वो अफगान भी क्वेटा जाके आया था। तो पिछले 3-4 दिन से अमेरिका के अपने टेलीविजन पे पाकिस्तान अफगान कनेक्शन सारा वही चल रहा था कि ये आतंकवाद का कनेक्शन वहां से आ रहा है। और 2 कांग्रेसमैन रिपब्लिकन, चाहे उसका नतीजा कुछ ना निकले, लेकिन 2 रिपब्लिकन ने एक बिल पेश कर दिया है अपनी कांग्रेस में कि पाकिस्तान को आतंकवाद सपोर्ट करने वाला देश डिक्लेयर कर देना चाहिए, जो कि उन्होंने 3 देशों को किया हुआ है, ईरान को, सीरिया को और सूडान को। अगर वो डिक्लेयर हो जाता है तो ये ना कोई हथियार मिलेंगे, ना इनको अमेरिका से कोई। नहीं, केसी सिंह साहब, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, एक मिनट केसी सिंह साहब, जिस बात का आपने जिक्र किया, प्रेरणा देसाई, हम आपसे जानना चाहेंगे, अमेरिका, आप चूंकि न्यूयॉर्क में मौजूद हैं, वहां पर क्या रिएक्शन है पाकिस्तान के इस कथन को लेकर? और चूंकि 2 कांग्रेस पर्सन ने वहां पर जो टेररिस्ट स्टेट के तौर पर पाकिस्तान का जिक्र किया है, क्या रिएक्शन है प्रेरणा वहां पर? जी, यहाँ पे रिएक्शन काफी साफ है। तो जैसे आपने कहा कि 2 लेजिस्लेटर्स हैं यहाँ पे, उन्होंने पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट करार करने के लिए एक लेजिस्लेशन मूव किया है।
2 दिन पहले बराक ओबामा ने भी यह कहा है कि जो प्रॉक्सी वॉर चल रहा है इंडिया पाकिस्तान की टेरिटरी को लेकर, पाकिस्तान को उसे रोकना चाहिए और टेररिज्म को लेकर और स्ट्रिक्ट बनना चाहिए और सख्त बनना चाहिए। इसका हमें ये लगा था कि पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर जब अपना एड्रेस देंगे तो इसका नतीजा उस पर लगेगा इन सब मामलों का, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। यूएस में लेकर इतना बात तो साफ है कि पाकिस्तान को भले ही एक एलाय समझा जाता, इस समय थोड़ा सोच विचार किया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ कितना झुकना चाहिए। जीडी बख्शी साहब, हमारी आवाज अब तक आ रही है? हेलो, आप ले क्यों नहीं रहे प्लीज भैया? जीडी बख्शी साहब, आपसे सवाल करें, जब आवाज आ रही है? अगर आवाज आ रही है तो बताइए अब रास्ता क्या है जो नवाज शरीफ ने कहा उसके बाद भारत के सामने? अच्छा, आवाज जा रही है, आ रही है। शहनवाज साहब, गवर्नमेंट का रुख अब क्या होना चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से कश्मीर के मामले में सीधे दखल ही नहीं बल्कि आतंकवाद के साथ खड़ा पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र में नजर आ रहा है, तो अब आगे क्या होना चाहिए? शहनवाज साहब, देखिए, जो हमारा रुख है वो स्पष्ट है और हमारी रणनीति भी स्पष्ट है। जिस तरह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का 16 मिनट का भाषण एक झूठ का पुलंदा था और एक तरफ अपने बारे में बताना कि हम पाकिस्तान के पास बताने को कुछ नहीं है, वो एक सुई भी नहीं बना सकता, लेकिन हर बात में तकिया कलाम हो गया उसका कि वो अपने आप को न्यूक्लियर स्टेट बताता जरूर है। उसकी हैसियत कुछ नहीं है दुनिया के सामने, एक ही उसके पास है कि हम न्यूक्लियर स्टेट हैं। तो न्यूक्लियर स्टेट का जिक्र करना, बुरहान वानी जो पूरी दुनिया जानती है, पूरे दुनिया के देश जानते हैं कि वो एक आतंकवादी था, खुद आतंकी हरकतों को अपने फेसबुक पे, ट्विटर पे पोस्ट करता था। एक आतंकी को वहां पर महिमा मंडित करना, ये साफ है कि दुनिया को अब जानना चाहिए कि पाकिस्तान सबसे बड़ी मिसाल है। नहीं शहनवाज जी, मसला इतना पर नहीं है, इसकी गंभीरता शहनवाज जी समझनी होगी। आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं वो सही अपनी जगह पर, लेकिन हमने देखा 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जब भाषण देते हैं संयुक्त राष्ट्र में तो इन तमाम चीजों का जिक्र उन्होंने किया और इस बात का जिक्र किया कि वो बार बार धमकी देता है कि हम परमाणु हथियारों से लैस हैं। ये मैसेज के भीतर अब भारत को क्या करना चाहिए? जी, आपने देखिए 2002 की स्पीच आपने वाजपेयी जी की भी दिखाई जी, और वाजपेयी जी ने जो बातें कही थी हम आज भी उस पर खड़े हैं कि पाकिस्तान के पास बताने को और दिखाने को कुछ नहीं है। दूसरों की खैरात और भीख पर चलने वाला देश, दूसरों से हथियार लेकर चलने वाला देश भारत से हथियार की होड़ की बात कर रहा है। इससे साफ जाहिर है कि वो अंदर से डरा सहमा है। पाकिस्तान सिर्फ कश्मीर का मुद्दा उठाकर अपना डर दुनिया के सामने दिखा रहा है और भारत को जो करना है, अगर वो खुद ये भी कह रहे हैं कि हम आतंक से ज्यादा पीड़ित हैं। ये पाकिस्तान का पेट डायलॉग है, किसी भी पाकिस्तानी की तकरीर दुनिया के किसी फोरम पर सुन लें, वो कहेंगे कि हम ज्यादा आतंकवाद से पीड़ित हैं। लेकिन बुरहान वानी को आतंकी नहीं बताना, कश्मीर के अंदर ठीक कह रहे हैं, इस बात का जिक्र आप कर रहे हैं, लेकिन बार बार सवाल जीडी बख्शी साहब क्या करना चाहिए भारत को? अब भाषण आपने भी सुना, जीडी बख्शी साहब। देखिए, मैं सबसे पहले आपको याद दिलाना चाहता हूं कि सन 2010 में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स की लिस्ट से जम्मू एंड कश्मीर को हटा दिया था, क्योंकि शिमला एग्रीमेंट के बाद ये बायलैटरली सेटल होनी है और वो दुनिया जो है वो तंग आ चुकी है। पाकिस्तान का जो कश्मीरी राग, जो वो 70 साल हो गए तकरीबन उसको अलापते, उसको ढकोसला जो है, उससे दुनिया तंग आ चुकी है। किसी के पास फुर्सत नहीं है उसके लिए। जैसे केसी सिंह साहब बता रहे थे, आज जहां नवाज शरीफ साहब ये
डकरा के ये कश्मीर की आवाजें निकाल रहे थे, वहां अमेरिका में 2 सेनेटर्स ने पाकिस्तान के खिलाफ जो है टेररिस्ट स्टेट स्पॉन्सर और टेररिज्म का लिए एक वो रेजोल्यूशन वहां पे इंट्रोड्यूस करी है, और रूस ने उनके साथ एक्सरसाइज बंद कर दी है। फ्रांस और जर्मनी ने सीधे सीधे भारतवर्ष का पक्ष अपनाया है। पाकिस्तान आज अकेला खड़ा होकर अपना राग अलाप सकता है, अगर वो समझता है कि कोई इससे फर्क पड़ेगा, वो नहीं। हमको देखना है कि पाकिस्तान टेररिज्म का एजेंडा हटाकर, पूरी दुनिया जानती है ये स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म है, पूरी दुनिया जानती है कि जिसने अभी अमेरिका में हमला किया है वो भी जो है वो पाकिस्तान में 1.5 साल लगा के आया है, रेडिकलाइज होके आया है। जो हमला दुनिया में होता है वो पाकिस्तान को ट्रेस बैक हो जाता है। पाकिस्तान जो है वो जो अपना कश्मीर का एजेंडा दुनिया पे थोपना चाहता है, वो नैरेटिव हम पे थोपना चाहता है, और हमारा जो नैरेटिव है टेररिज्म का, उससे दुनिया का ध्यान हटाना चाहता है। मैं समझता हूं हमें पुरजोर से इसी नैरेटिव ऑफ टेररिज्म पे वापस आना चाहिए। किसने पाकिस्तान को हक दिया है कि वो जब चाहे, जहां चाहे, जिस टारगेट पे चाहे टेररिस्ट पार करा के लाइन ऑफ कंट्रोल के कत्लो गारत हिंदुस्तान में कर सकता है? 30 साल से कर रहा है। कब तक ये चलता रहेगा? कुछ हमारे जो बंधु हैं, डिप्लोमेट बंधु हैं, मैंने केसी सिंह साहब को कल सुना, और मैं केवल एक चीज समझना चाहता हूं कि हमारे कुछ डिप्लोमेट्स कह रहे हैं कि भाई अब हम अभी रिटेलिएट ना करें, हम जो है पाकिस्तान की मदद हो जाएगी कश्मीर का एजेंडा एस्टैब्लिश करने के लिए। तो क्या हमने टेररिज्म का एजेंडा इतनी आसानी से छोड़ दिया? हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि अगर पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल के पार वार करे तो युद्ध नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, हम रिस्ट्रेंट एस्टैब्लिश करेंगे कि पूरा ठेका हमारे सिर पे है कि न्यूक्लियर युद्ध ना हो जाए। लेकिन अगर हम रिटेलिएट करें तो साहब फिर तो पूरे आसमान हमारे सर पे गिर जाएगा, न्यूक्लियर बमों की वो बरसात होगी जो दुनिया ने कभी देखी ना सुनी। ये बकवास है। मैं समझता हूं कि हमको अपना नैरेटिव इंपोज करना चाहिए पाकिस्तान के घिसे पिटे कश्मीर नैरेटिव के ऊपर। दुनिया के सामने जो सवाल है वो है टेररिज्म का, चाहे आईएस की टेररिज्म का या दुनिया के सबसे बड़ा सोर्स जो टेररिज्म का है एफ पाक बेल्ट में, जो पाकिस्तान ने एक मदरसा बेल्ट खोल रखी है दुनिया भर में टेररिज्म एक्सपोर्ट करने का। अफगानिस्तान इससे परेशान, बांग्लादेश इससे परेशान, ईरान इससे परेशान, भारतवर्ष इससे परेशान। सबसे पहले तो हमको बाइकआउट करनी चाहिए अगली सार्क मीटिंग। हम सारे जो एशियाई देश हैं, वी शुड थिंक ऑफ सार्क माइनस पाकिस्तान, और टेररिज्म के ऊपर पूरी दुनिया की तवज्जो आनी चाहिए कि पाकिस्तान का ये हमला जिसमें 18 भारतीय सैनिक मार डाले गए, शहीद हुए, वो मंजूर नहीं है। उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। कश्मीर जाए भाड़ में, कश्मीर जाए भाड़ में। पाकिस्तान ये घिसा पिटा राग नहीं अलाप सकता। प्लेबिसाइड क्या उसने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर खाली किया है? क्या उसने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन को ऑनर किया है? नहीं। तो बकवास नहीं करे। हमने वहां पे ना सिर्फ हमारा लीगल पक्ष हमारे फेवर में है, महाराजा कश्मीर ने एक्सीड किया था लीगली, उसके बाद 1956 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने रेटिफाई किया था उस एक्सेशन को। प्लेबिसाइड इज क्लोज, द कश्मीर केस इज क्लोज। अगर बात होनी है तो वो पीओके कब दे रहा है उसके ऊपर हो। पीओके में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन कब ये वहां पे इंपोज कर रहा है, कब उसको कैरी आउट करेगा उसके हुक्म, इसके ऊपर बात हो सकती है। गिलगिट बाल्टिस्तान में क्यों रोड बन रही है, वो हमारा इलाका है, इस पे बात होनी चाहिए। और कोई मुद्दा हमारे पास नहीं है सिवाय टेररिज्म और टेररिज्म। जब तक वो बंद नहीं होती, वी मस्ट इंपोज आवर नैरेटिव ऑन द पाकिस्तानी नैरेटिव। केसी सिंह साहब अपने नैरेटिव्स का जिक्र कर रहे हैं। एक मिनट जीडी बख्शी साहब, आपने कहा कि अपने नैरेटिव्स रहेंगे, सार्क का बायकॉट करना चाहिए। एक सवाल, क्योंकि चीन कहीं ना कहीं पाकिस्तान के पीछे खड़ा है, इन स्थितियों के बीच जब युद्ध की स्थिति सामने आकर खड़ी हो रही है, जिसका जिक्र जीडी बख्शी साहब कर रहे हैं, रास्ता यही है? बस अभी तो आया हूं यार। केसी सिंह साहब देखो, चीन के प्रधानमंत्री के साथ इनकी मीटिंग हुई है, आरपी सिंह साहब आ रहे हैं, पहले बोले हैं आज, वो चौथे नंबर पे थे।
हाँ, वो चौथे नंबर पे थे, वो बोल के हटे हैं, फिर इनकी वॉल्डॉफ में मीटिंग हुई है। उसके बाद एक चीन ने स्टेटमेंट इशू किया है जो ये कह रहे हैं कि नहीं पाकिस्तान उनकी हमायत है पाकिस्तान के साथ कश्मीर पे। अब वो किस हद तक जाते हैं ये हमें नहीं मालूम, लेकिन ये जरूर है कि जो आज का चाइना है, जो शी जिनपिंग का चाइना है, जो आज की PLA है, जिस तरीके से साउथ चाइना सी में वो बिहेव कर रहे हैं, हमें ये सोच समझ के कर चलना चाहिए कि ये कल का चीन नहीं है, ये आज का चीन है। ये ज्यादा एग्रेसिव है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें कदम नहीं उठाने चाहिए, लेकिन सोच समझ के उठाने नहीं, आप बार एक मिनट केसी सिंह साहब, जो आप बोल रहे हो कि सोच समझ के जब आप जिक्र कर रहे हो, इस बात को समझिए, बुरहान वानी आपके लिए टेररिस्ट है, पाकिस्तान के लिए नहीं है। भारत जिसको जैश को टेररिस्ट बताता है, वो संयुक्त राष्ट्र में चीन उसको नहीं मानता है टेररिस्ट। इसका मतलब टेररिज्म की परिभाषा दुनिया को बताएंगे। हाँ, नहीं, वो हम सारी, हाँ, ये हम सारी दुनिया को बताएंगे। और ये इसीलिए आज हाई कमिश्नर को बुला के फॉरेन सेक्रेटरी ने सारे सबूत दिए हैं। जब हमारी विदेश मंत्री UN में जाएंगी, इन्होंने तो अपना आज पाठ पढ़ दिया, तो वो पाठ हमारा पढ़ेंगी, वो बताएंगे कि ये आतंकवाद कैसे आ रहा है और क्या क्या प्रूफ हैं। जो पहले पठानकोट में था, अब उरी में था, तो हमें ये पाठ तो हमने पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन हमें जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसको साथ रखना है, उनको समझाना है कि ये गलती कर रहा है पाकिस्तान। जो हमने एक्शन लेना है, फौज ने एक्शन लेना है, वो सरकार ने कह दिया फौज लेगी। लेकिन हम एकदम ही ये कहें, हमें ये इनकी पुरानी कथा है कि बॉम्ब चल जाएंगे, हम न्यूक्लियर हैं, हम ये हैं, रिस्ट्रेंट रेजीम होनी चाहिए। अब इनको 10 बार पाकिस्तान को समझाया है कि बायलैटरल, कभी सुना है कि बायलैटरल एग्रीमेंट हो न्यूक्लियर टेस्टिंग पे? न्यूक्लियर मिसाइल एक दुनिया से लेके पूरी दुनिया में जाते हैं, चीन का कौन चीन का लेगा उसमें? हमने कहा हमारे एक सरहद पे चीन है, दूसरे सरहद पे पाकिस्तान है, आपके साथ अकेला हम रेस्ट्रेंट रेजीम कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हमारा चीन के साथ भी है, या तो दोनों करो हमारे साथ। तो वो पाकिस्तान को चीन आगे कर देता है, ये चीन की गेम है, तो ये हमें मालूम है। तो अपना ये जो एक तरह से वहां जाके बड़े रीजनेबल, पीस लविंग और आतंकवाद के खिलाफ ये एक पेश करेंगे, एक तरह से पाकिस्तान की फौज इनको दिखावे के लिए प्रधानमंत्री को आगे भेज देती है, लेकिन इनकी कोई उन पे पहुंच नहीं है, उनको ये रोक नहीं पाते, ये भी मानने को तैयार नहीं। एक बार माने हैं पठानकोट में कि वहां से लोग आए थे, फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन वाली टीम पे मुकर गए। अब तो ये मान ही नहीं रहे कि 4 आदमी उधर से आए हैं। मोटी बात मैं ये पूछता हूं, चलो वो वहां से नहीं आए जो 4 उरी में मरे हैं, तो उनको लोकल विलेजर किसी ने क्लेम नहीं की उनकी बॉडी। बरहानी के दफनाने पे कितना दंगा फसाद हुआ, ये 4 जो मरे इनकी बॉडी लेने तो कोई आया नहीं विलेजर। इसलिए नहीं आया क्योंकि दूसरी साइड से आए हैं, ये कश्मीर के तो थे ही नहीं। तो पाकिस्तान कहां से कह रहा है कि नहीं यहां से नहीं आए, ये कैसे पार कर सकते हैं, वहां तो तारे हैं, वहां फौज है। तो इसकी रणनीति सरकार मेरे ख्याल में बना रही है, लेकिन ये ठीक है कि वो एक स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ये नहीं होना चाहिए कि बटन दबाएं अभी हम एक्शन ले लें। नहीं, ये आप ठीक कह रहे हैं कि वो सरकार समझ रही है, आप सही कह रहे हो। आरपीएन सिंह साहब, पॉलिटिकल तौर पे चूंकि आप कांग्रेस जिस लिहाज से सरकार के ऊपर ही कुछ संदेह उठा रही है, सवाल 2 है, एक्शन, डिप्लोमेसी या पॉलिटिकल सिचुएशन सामने। आरपीएन सिंह साहब बता दीजिए, मैं जा रहा हूं, बोलिए कुछ पूछ। बहुत साफ तौर से प्रसून जी मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, पाकिस्तान की ये हरकतें कभी बंद नहीं होंगी। हमने देखा कि किस तरह प्रधानमंत्री ने आज UN में फिर से झूठ बोला, परंतु हमें अपने में भी सुधार लाने की जरूरत है। 10 सालों में कश्मीर में हमने बड़े साफ तौर से देखा कि मंत्र 10 साल में शांति बहाल करने के लिए हमारी सरकार ने किस तरह काम किया। और 10 साल में मंत्र क्या था? उत्तर प्रदेश मैं बात कर रहा हूं, कश्मीर की क्या बात हुई? वहां जम्मू और कश्मीर में फिर से हमने देखा कि शांति बहाल हुई। हमने देखा कि पर्यटक, शिक्षा, नौकरियों में लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया गया। जब शांति वहां बहाल हुई तो अलगाववाद, आतंकवाद और पाकिस्तान के मंसूबे जम्मू कश्मीर में बिल्कुल नहीं कायम हो पाए। परंतु आज हम क्या देखते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर हम देखते हैं कि अलगाववाद, आतंकवाद और पाकिस्तान के मंसूबे पूरे जम्मू कश्मीर में किस तरह उन्होंने फैलावा दे रखा है। एक मिनट, मैं दूसरी चीज बोलता हूं, मैं दूसरी चीज, मैं पुनवर्धन जी,
दूसरी चीज मैं बोलना चाहता हूं, जब वो दर्दनाक घटना हुई थी, प्रसून जी सबको आपने मौका दिया, मुझे भी मौका दीजिए। जब जम्मू कश्मीर में जब मुंबई में 26/11 का वो दर्दनाक घटना हुई, तो हमारी सरकार ने इस तरह के इसी तरह के डोसियर ऐसे डोसियर हमने यूएन को भेजे, हमने पूरे विश्व में इस पाकिस्तान के डोसियर चलाए कि उसके बाद पाकिस्तान ने आंख उठाकर हिंदुस्तान की तरफ नहीं देखा। उनको पूरे देश को, पूरे दुनिया को बताया कि जो स्टेट एक्टर है वो सरकार का एक्टर है, स्टेट एक्टर और नॉन स्टेट एक्टर में कोई फर्क नहीं है। उनका जो खुलासा हमने विश्व के सामने किया, पाकिस्तान ने हमारे तरफ देखा नहीं। परंतु जब पठानकोट में आज हमला होता है, 6 महीने में हमारे ऊपर 2 मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स में, आम आदमियों पर नहीं पर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स में आज अटैक होता है, तो हमारे के लिए जब आईएसआई पठानकोट में आकर हमारे यहां जांच कर जाती है, तो पाकिस्तान के मंसूबे साफ होते हैं। हमने उनको पूरे विश्व में एक किनारे में डाला था कि सब पूरा विश्व उनको एक आतंकवाद देश की तरह देखता था। लेकिन आरपीएन सिंह साहब, आप आज इस मौके पर अगर ये कह रहे हैं, हमारा सवाल है पाकिस्तान ने जिन बातों का जिक्र आज किया है, ले लीजिए इसमें। नहीं, हम बिल्कुल हम आपका पक्ष ले रहे हैं, लेकिन इस सवाल के साथ लेना चाह रहे हैं शहनवाज जी कि जिन स्थितियों में आज पाकिस्तान खड़ा है, उन स्थितियों और हमला पाकिस्तान पे नहीं कर रहे हैं, ये बीजेपी, ये नवाज शरीफ को नहीं घेर रहे हैं, पाकिस्तान को नहीं घेर रहे हैं, ये आरपीएन सिंह साहब बीजेपी पे हमला कर रहे हैं। सवाल है नवाज शरीफ का, आप कह रहे हैं 10 साल आपकी हुकूमत थी, कश्मीर तो 60 साल आपकी देन है। अगर कश्मीर में प्रॉब्लम है तो नेहरू जी की गलतियों की वजह से है। अगर कश्मीर में आप 10 साल के लिए, क्या जम्मू कश्मीर की प्रॉब्लम आपकी देन है? आप 60 साल का हिसाब दीजिए। आप कह रहे हैं कि 10 साल में आपने बड़ी शांति कर दी थी, पाकिस्तान वहां हरकत कर रहा है, जम्मू कश्मीर की प्रॉब्लम। शहनवाज जी और आरपीएन सिंह जी, हमें एक चीज लग रही है, नहीं शहनवाज जी एक मिनट, शहनवाज जी और आरपीएन सिंह जी, हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का एक रुख है जो उसने अंतर्राष्ट्रीय मंच पे रखा है। शहनवाज जी, हमें लग रहा है, देखिए आरपीएन सिंह जो कह रहे हैं सब सुन रहे होंगे, लेकिन सवाल पहली बार ये है कि मुश्किल देखिए यही है, आप इसको पॉलिटिकल फ्रंट पे ले जाना चाह रहे हैं, पार्टी फ्रंट पे ले जाना चाह रहे हैं, तो अलग मसला है। सिर्फ ये बताना आप दोनों ही अगर इस रूप में सब कुछ आप आरोप प्रत्यारोप, हम नहीं ले जा रहे थे। अरे तो आप हम लोग समझ रहे हैं ना कि हम जब यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान जब इस रूप में बात कर रहा है, सुनिए, हम इसीलिए पक्ष सुनिए, यकीनन सरकार का सवाल सुन रहे हैं, लेकिन क्या नहीं तो आप ठीक है, कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते रहिए। ठीक बिल्कुल आप कह रहे हैं 2 साल के अंदर सब कुछ खराब हो गया, आप किसको मौका दे रहे हैं? 1989 के बाद से हमें उम्मीद नहीं है वो सरकार को 1989 देखिए आप, कांग्रेस को नवाज शरीफ के बयान की मजम्मत करनी चाहिए, न कि सरकार को ब्लेम करना चाहिए। अभी तो नवाज शरीफ के बयान पर डिबेट है, आरपीएन सिंह साहब और कांग्रेस, मोदी सरकार 2 साल 10 साल इनके अच्छे थे, हमने खराब कर दिए। अरे 60 साल में आपने क्या किया, उसकी डिबेट अलग करेंगे। अभी नवाज शरीफ ने जो बात कही है, बुरहान वानी को हीरो बताया है, वो आतंकी था, की बात नहीं हो रही है। हम बनाएंगे पूरे दुनिया के अंदर कि आपने जो पाकिस्तान के बारे में आपके प्रधानमंत्री ने जब विपक्ष में थे, किस तरह के गैर जिम्मेदारी केसेस की गैर जिम्मेदारी बयान दिए पैदा कर रहा है, जो आपने जब आप विपक्ष में थे, किस तरह के आपने बयान दिए। शहनवाज भाई, बड़े अफसोस की बात है कि आपने देश के सामने जब आप विपक्ष में थे, हम इसीलिए तो शहनवाज जी आपसे पहले सवाल से पूछ रहे हैं भारत को क्या करना चाहिए। हम आपसे पहले सवाल से हमने बात यहीं से शुरू की। अरे भाई, लेकिन शहनवाज जी पहला सवाल ही हमारा आपसे रहा, अब भारत को क्या करना चाहिए, तो आप बोल रहे हैं इसने ये कहा, इसने ये कहा, उसी रूप में वो पॉलिटिकल रूप से आ जा रहे हैं। अब रास्ता क्या है भारत के सामने? मैं आरपीएन सिंह साहब को कहता हूं, ये डिबेट नेहरू जी ने 50 साल में क्या किया और मोदी जी ने 2 साल में किए। अब लीजिए फिर वहां पर एक मिनट, हम जरा सा आपको, हमारे साथ मेहर तरार पाकिस्तान की जर्नलिस्ट भी हमारे साथ जुड़ गई है। मेहर तरार, भारत में बुरहान वानी टेररिस्ट है, लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के लिए वो टेररिस्ट नहीं है, इसका क्या मतलब है? अब ये जी हेलो, हाँ जी, लेकिन जिन्होंने ये स्पीच किया, ये तो आप उनसे पूछें, उनके बारे में आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट कश्मीर के बारे में क्या सोचती है, कश्मीर के बारे में क्या राय रखती है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के हर सेशन में क्या बोलते हैं।
वो सही है, वो गलत है, उसको कौन कितना जस्टिफाइड समझता है, कौन कितना किस नज़र से देखता है, दैट इज कम्प्लीटली इररेलेवेंट। ये सारा कुछ आई बिलीव कि हमने कभी प्राइम मिनिस्टर, आई एम नॉट सेइंग कि वो उनकी बातों से मैं उनकी हर बात से एग्री करती हूँ, या आई बिलीव कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को और किसी टॉपिक पे बात करने की ज़रूरत नहीं थी सिवाय एक टॉपिक पे जिससे उन्होंने किया। बट आई डू बिलीव कि दिस हैज सिंपली हैपेंड बिकॉज ऑफ सो मच दैट हैज कम फ्रॉम इंडिया इन द लास्ट फ्यू डेज। इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन था, और जब आप एक गवर्नमेंट को सीधा डायरेक्टली अटैक करना शुरू कर देते हो, बिकॉज आई डोंट थिंक कि ऑनेस्टली आप में से कितने लोग हैं जो ये बिलीव करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का किसी किस्म की टेररिज्म में आपके मुल्क में कोई हाथ है, या तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ हमेशा पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ने की ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। तो आई डू बिलीव कि बहुत सारी बातें लोग अपनी डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसीज को खुश करने के लिए करते हैं। पाकिस्तानी देयर आर मिलियंस ऑफ पाकिस्तानी जो बिलीव से 5 जंगें हो चुकी हैं इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में, और कश्मीर विल ऑलवेज रिमेन एन इम्पॉर्टेंट इशू। एज आई सेड, कोई एग्री करे ना करे, मैं पर्सनली किसी चीज़ के बारे में क्या समझती हूँ, बट दिस इज हाउ पाकिस्तानी लोकेटेड। अगर आप पाकिस्तान के ट्विटर टाइमलाइन पे लोगों के कमेंट देखो, लोग मेरे साथ इस बात पे बहस करेंगे, मैंने कहा कि उन्होंने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर एक टॉपिक को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया। बट एज आई सेड, हु एम आई टू डिसाइड कि उन्होंने क्यों कहा। मैं गवर्नमेंट को तो नहीं रिप्रेजेंट करती। महक, एक सवाल का जवाब बहुत साफ चाहिए कि आपको वहां पर, आप चूंकि पाकिस्तान में हैं, क्या महसूस करती है? ये नेगेटिव संबंध की दिशा में बढ़ते हुए दोनों देशों के कदम है, या जंग की तरफ बढ़ते हुए कदम है? दैट इज एक्चुअली माय पॉइंट कि जिस वक्त ये हुआ, बिकॉज ऑनेस्टली मैं तो उस तरह के लोगों में से हूँ कि मैं पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान के फ्लॉज को देखती हूँ। मैं अभी एक नेशनल टीवी पे पाकिस्तान के एक प्रोग्राम में 8 से 9 बजे प्राइम टाइम में उसमें एक फॉर्मर जनरल भी थे और एक बहुत ज़्यादा डिफेंस एनालिस्ट हैं जो पाके इंडिया के प्रोग्राम्स में भी आते हैं, और उनके इंडिया के बारे में कभी उन्होंने कोई अच्छी बात नहीं की। उनकी मौजूदगी में मैंने आखिरी सेंटेंस यही कहा कि पाकिस्तान शुड से कि उनकी मॉरल या डिप्लोमेटिक सपोर्ट है फॉर कश्मीर, बट पाकिस्तान शुड बी वेरी कैटेगोरिकली क्लियर कि किसी किस्म का कोई आर्म स्ट्रगल वो कश्मीर में एंडोर्स करते हैं ना करेंगे। दैट वाज द लास्ट थिंग आई सेड ऑन पाकिस्तान नेशनल टीवी। सो आई डू बिलीव के कमेंट्री वॉर मॉन्गरिंग एक ऐसी दुनिया में, सीरिया में देखें, इराक में देखें, अफगानिस्तान में देखें, दुनिया की किसी जगह पे कभी भी ना प्रॉक्सी वॉर्स ने ना प्रॉपर वॉर्स ने कभी किसी को कुछ दिया है। एंड आई सीरियसली नहीं, ये आप सही है कि प्रॉक्सी वार से कुछ हुआ नहीं, वार मॉन्गरिंग नहीं होनी चाहिए, आप सही कह रहे हैं। केसी सिंह साहब, हम इससे पहले कुछ हिस्सा सुनाए जरा क्या कहा गया। एक सवाल हम पूछना चाहेंगे, क्योंकि जिस बात का जिक्र हाफिज सईद लश्कर तोयबा का जो चीफ है, जमातुल दावा के चीफ है, वो बुरहान वानी के बारे में जो कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूशनली जनता ने चुना, वो जब उस बात को कहते हैं तो ये मैसेज भारत के लिए क्या है? कैसे सिंह साहब? नहीं, वो तो जाहिर है कि पाकिस्तान की जो सिविलियन गवर्नमेंट है वो इस टाइम उनमें और फौज की सोच में और आईएसआई की सोच में कोई अंतर नहीं रहा, क्योंकि उन पे जब हम प्रेशर डालेंगे तो ये तीनों इकट्ठे हो जाएंगे। हिंदुस्तान की ट्रेडिशनल पॉलिसी वाजपेयी के टाइम की या मनमोहन सिंह के टाइम की ये थी कि इनको अलग रखना चाहिए, कोशिश ये करें। कई बार तो जब मुशर्रफ थे तो अलग नहीं हो सकते थे, वही आदमी प्रेसिडेंट था, वही आर्मी चीफ था, फिर तो एक शख्स से आप बात करते हो। लेकिन जब सिविलियन गवर्नमेंट होती है, कोशिश ये होती है कि उनको अलग रखें। अब इनकी जो सोच है और जो इनका बोलना है वो एक हो गया है, तो इसलिए जो कश्मीर में हो रहा है ये पाकिस्तान गलत इसको अंडरस्टैंड कर रहा है। उनको लगता है कि हालत वैली में इतनी बिगड़ चुकी है कि अब हिंदुस्तान इस पे संतुलन नहीं पा सकेगा, तो इसलिए वो अपनी सारी डिप्लोमेटिक और मिलिट्री माइट उस पर फोकस कर रहे हैं। उनको लगता है कि ये एक बार फिर मौका जो 1990-91 में आया था दोबारा आ गया है, तो ये गलती करेंगे। पाकिस्तान ने कई बार गलतियां की हैं जब हिंदुस्तान पे गलत अंदाज लगाया है, 65 में, 71 में, कारगिल में। वो गलत कैलकुलेट कर लेते हैं हिंदुस्तान की कैपेसिटीज को, कैलकुलेशंस को, इंटरनल सिचुएशन को। वो फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी को मिसरीड कर रहे हैं, इस सरकार को मिसरीड कर रहे हैं। आमतौर पे लड़ाइयां तब होती हैं जब आप एक दूसरे को
मिसरीड कर लेते हो। तो ये नहीं तो आप कह रहे हैं कि ये सिचुएशन बन रही है, करनी चाहिए अगर थिंकर्स दोनों साइड के समझा सकें। अब ये सिचुएशन, क्योंकि जो सुनने में जो पब्लिक प्रेशर यहां पे गवर्नमेंट पे बन रहा है उसमें ये है कि नहीं हमने बदला लेना है। गवर्नमेंट जो मेरे को लग रहा है पिछले कुछ दिन से एक स्टेट्समैन लाइक अप्रोच प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, वो शांत रह रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि पहले डिप्लोमेसी का प्रेशर डालें, फिर इसको लोकल लेवल पे छोड़ दें फौज पे। इसको कैसे उन्होंने तय करना है, उन्होंने कैसे पाकिस्तान की फौज के साथ निपटना है, ये एक नॉर्दर्न कमांड पे छोड़ दें या इसको चीज को बढ़ाना है, ये अभी तय नहीं हुआ। लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री की मेरे को जो देखने सरकार की ये लग रही है वो स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं एस्केलेट, की पहले डिप्लोमेसी पे करो, यूएन में जाओ, आतंकवाद पे फोकस करो, उसके बाद आस्ता आस्ता पब्लिक ओपिनियन पे काबू डाल के फिर किस तरीके से इसको करना करो। लेकिन अगर इसमें कोई और गलती होती है फिर बात बढ़ सकती है। नहीं, आपने देखिए दो बड़ी महत्वपूर्ण बात की, एक तो मिसरीड किया जा रहा है भारत को, और 71 और 65 का भी जिक्र आपने कर दिया। जेडी बख्शी साहब, हम आपसे सवाल करें उससे पहले जरा आप ये सुन लीजिए, क्योंकि जिस बात का जिक्र हम कर रहे हैं कि हाफिज सईद जिस बात को जिस तरीके से पाकिस्तान में रहकर कहता है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अंतर्राष्ट्रीय मंच और संयुक्त राष्ट्र में बिल्कुल उसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। जरा पहले सुन लीजिए क्या स्थिति है। इंशाअल्लाह कश्मीर की आजादी को कोई नहीं रोक सकता। अब आयो बुरहान वानी ने शहादत से चंद दिन पहले मुझसे फोन पर कहा कि मेरी जिंदगी की ख्वाहिश थी कि मैं आपसे बात कर लूं, ख्वाहिश पूरी होगी, अब मैं सिर्फ शहादत का मुंतजिर हूं। चंद दिन के बाद उसकी शहादत की खबर आई। ऐसे नौजवानों की शहादत अल्लाह ताला के यहां मकबूल शहादत कि उसके बाद कश्मीर भी सड़कों पर और पाकिस्तान भी सड़कों पर। Peace and normalization between Pakistan and India cannot be achieved without a resolution of the Kashmir dispute. This is an objective evaluation, not a partisan position. Our predictions have now been confirmed by events. A new generation of Kashmiris has risen spontaneously against India's illegal occupation, demanding freedom from occupation. Burhan Wani, the young leader murdered by Indian forces, has emerged as a symbol of the latest Kashmiri intifada. जाहिर है ये बहुत तेरे सवाल खड़े होते हैं, लेकिन इन सब के बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप का प्रतिक्रिया आ गई है भारत सरकार की तरफ से कि आतंकवाद का खात्मा ही भारत की एकमात्र शर्त है। यानी जिस बात का जिक्र नवाज शरीफ ने किया कि भारत के साथ भारत चाहता है शर्तों के साथ बातचीत हो, तो बहुत साफ कहा गया है कि आतंकवाद का खात्मा भारत की एकमात्र शर्त है। यानी आतंकवाद जिस लहजे में पाकिस्तान ने आश्रय दिया हुआ है, और इस बात का जिक्र बार बार हुआ है कि पाकिस्तान अपनी जमीन पर आतंकवाद को क्यों पनाह दे रहा है जो भारत के खिलाफ इस तरीके से कार्रवाई करते हैं, ये एक सवाल है। लेकिन एक दूसरा सवाल जेडी बख्शी साहब आपने जो उठाया, जिसमें आपने जिक्र किया, बहुत गुस्से में जेडी बख्शी साहब आपने कहा कश्मीर जाए भाड़ में, इस शब्द का आपने इस्तेमाल किया। हमारा सवाल है, मौका फिलहाल कश्मीर को समझते समझाते हुए स्ट्राइक का है, या आप जिस एक्शन की बात कर रहे हैं एक्शन लेते हुए डिप्लोमेसी का है? स्थिति क्या है जेडी बख्शी साहब? फिलहाल कश्मीर को समझते समझाते हुए स्ट्राइक का है, या आप जिस एक्शन की बात कर रहे हैं एक्शन लेते हुए डिप्लोमेसी का है? स्थिति क्या है? देखिए, मैं कहना यह चाहता हूं कि अब समय आ गया है जबकि हमारा टॉलरेंस का जो थ्रेशोल्ड है वो टेररिज्म के लिहाज से पूर्ण रूप से ब्रीच हो चुका है। पाकिस्तान में पूर्ण रूप से सहमत हूं केसी सिंह साहब से कि पाकिस्तान के फौज फिर सिचुएशन को मिसरीड कर रही है। वो अपने आप को वो समझ रही है कि कश्मीर में ऐसा बवाल हुआ है जो भारत की फौज सिक्योरिटी फोर्सेस संभाल नहीं पाएंगे। वो बहुत भारी गलतफहमी कर रहे हैं। हालत तकरीबन कंट्रोल में आ चुकी है, और अगर पाकिस्तान जो आका है इस टेररिज्म के, उसको सबक सिखाया जाए तो जो उसके प्यादे हैं जम्मू कश्मीर में वो अपने आप नियंत्रण में आ जाएंगे। प्लीज समझिए, इसको बोलते हैं दैट द व्हिपिंग बॉय। पाकिस्तान को हाथ में सारी इन कठपुतलियों, बुरहान वानी जैसी कठपुतलियों के तार
पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की आईएसआई के हाथ में है। अगर इसे चोट और नुकसान पहुंचाया गया, यहां की स्थिति अपने आप ठीक होगी। मैं आपको फिर दोहराता हूं, जम्मू कश्मीर की स्थिति अपने आप दुरुस्त होगी अगर आप ठोस एक्शन लें। हमारे पास पर्याप्त फौजें हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल डायमेंशन दोनों को देखने के लिए कोई घबराने की बात नहीं है। 2001 में भी जब ऑपरेशन पराक्रम हुआ था, कारगिल युद्ध में भी हमने दोनों मोर्चों को साथ संभाला था। हम फिर संभाल सकते हैं, ये किसी को फिक्र नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान से उस भाषा में बात की जाए जो पाकिस्तान की फौज के जनरल राहिल शरीफ साहब को समझ आती। अभी तक हम गलत शरीफ से शराफत की बातें कर रहे थे, अभी तक हम गलत शरीफ से शराफत की बात कर रहे थे। नवाज शरीफ साहब की कुछ नहीं चलती पाकिस्तान में। उनके असली आका वो हैं जिनसे वो इजाजत ले रहे थे कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में क्या कहना है इसके बारे में। तो ये तस्वीर अगर साफ है तो जो प्रेशर पॉइंट आपका पाकिस्तान में है वो है पाकिस्तान की फौज। उसे मत बख्शिए। हम हर बारी कोई ना कोई बहाना चुनकर इससे जो कतरा जाते हैं बड़ा तगड़ा एक्शन लेने के लिए, इस बार कोई कताने की जरूरत नहीं, इस बार पीछे हटने की जरूरत नहीं, नहीं तो हमारी क्रेडिबिलिटी बहुत सफर करेगी। मैं समझता हूं एक हिस्टोरिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है आज साउथ एशिया में, और भारत को पूरी दुनिया हमारे साथ है। भारत की पूरी आबादी में गहरा आक्रोश है, प्लीज उसे समझिए। भारत के लोगों में बहुत गहरा आक्रोश है, पूरी सरकार के साथ हैं आज के दिन। आप कड़ा और ठोस कदम लीजिए, बेधड़क लीजिए, दुनिया भी आपके साथ होगी और भारतवर्ष का एक एक बच्चा आपके साथ है। तो मैं नहीं समझता हमें किसी किस्म का, वी शुड नॉट टेक द काउंसिल ऑफ अफेयर्स। और ये जो टिड्डी दल निकल के आते हैं हर ऐसे कॉन्फ्लिक्ट के टाइम कि साहब आपके एक सोल्जर ने बॉर्डर लांघा तो आप पे न्यूक्लियर बमों की बरसात हो जाएगी। अरे साहब 3 महीने चली थी कारगिल का युद्ध, तकरीबन कितने बम दिल्ली पे गिरे। तो आप ऐसे गश खा के मरना मत शुरू हो जाइए लड़ाई के पहले। किसी को कोई डरने की जरूरत नहीं। ये सारा ये गीदड़ भभकी है। जब व्हेन पुश कम्स टू शव, पाकिस्तान के फौजी जर्नैल जो कि बड़े बड़े आलीशान बंगलों में रहते हैं, मर्सिडीज कार में चलते हैं, अरे साहब वो अपने घरों पे अपनी फैमिलीज के ऊपर न्यूक्लियर बम फटने नहीं देखना चाहते। वो बड़े रैशनल एक्टर्स आपको दिखेंगे। और अगर आप उनकी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन भी पढ़ लें तो जनरल किदवाई साहब ने साफ कहा है कि व्हेन अ लार्ज पार्ट ऑफ पाकिस्तान इज ओवररन, व्हेन अ लार्ज पार्ट ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेस इज डिस्ट्रॉयड, तब हम इस्तेमाल करेंगे। तो आप लार्ज पार्ट मत डिस्ट्रॉय करिए आप, लेकिन वो हिस्सा जरूर डिस्ट्रॉय करिए जिससे कि सबक पता चल जाए कि हमारे सब्र का बांध टूट चुका है। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान से डिप्लोमेटिक भाषा में नहीं, उस भाषा में बात की जाए जो पाकिस्तान की फौज को समझ आती है। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है वो है फौजी भाषा। उसको कहने का समय अब बहुत ही उपयुक्त है और वो आ गया है। और हमें पूरी उम्मीद है कि इस कसौटी पर हम खरे साबित होंगे। हमारी जग हसाई नहीं होगी कि हम हर बात गीदड़ भभकी हम भी देते हैं। हमें कल कोई ये ना इल्जाम लगाए कि भारतवर्ष जैसा महान ताकतवर देश गीदड़ भभकी देता है। हम गीदड़ भभकी नहीं देते। हम जो कहेंगे वो मैदान जंग में करके दिखाने की क्षमता हम में 100% है। और इस वक्त देश को एकजुट होकर वो करना चाहिए जो शायद हमें 30 साल पहले कर देना चाहिए था। केसी सिंह साहब, राजदीप भी हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन एक सवाल पहले आपसे, जिसका बात का आपने 65 और 71 का जिक्र किया, करगिल का जिक्र किया। हम जिक्र कर रहे हैं पार्लियामेंट अटैक का, हम जिक्र करना चाह रहे हैं 26/11 का जो मुंबई में हुआ। इन दोनों वक्त में संयुक्त राष्ट्र में भारत का जो रुख रहा, अब 26 तारीख को भी सुषमा स्वराज को जाकर वहां बोलना है। जेडी बख्शी साहब एक्शन की बात कर रहे हैं, डिप्लोमेसी और एक्शन दोनों एक साथ। और 26 तारीख को भारत संयुक्त राष्ट्र में कहे तब तक का इंतजार, या आपको लगता है नहीं उसमें भी देर हो जाएगी? नहीं, एक चीज मैं पहले आपको बता दूं कि 2001 में और 2008 में और अब में अंतर यह है कि उस समय अमेरिका की फौज अफगानिस्तान में थी और उनको पाकिस्तान की जरूरत थी। 2001 में तो अटैक ही इसलिए हुआ क्योंकि सितंबर में उनके टावर
टूटे और वो सितंबर 2001 में उनकी फौज अफगानिस्तान में आ गई। तो ये शरारत इसलिए की पाकिस्तान की फौज ने, पार्लियामेंट पे जो अटैक हुआ, कि उनको लड़ना ना पड़े, उधर अलकायदा को रोकना ना पड़े। वो कहें देखो हिंदुस्तान की तरफ हमें फौज चाहिए। तो उस समय अमेरिका हमारे पे प्रेशर डालता था, आप पाकिस्तान को कुछ मत कहो, क्योंकि ये जो लड़ाई इधर लड़ रहे हैं, बेशक पूरे दिल से नहीं लड़ रहे, उससे हटके अपनी फौजें वापस ले जाएंगे आपके फ्रंट पे। तो हिंदुस्तान रुक जाता था। वो कहते थे हम इन पे डिप्लोमेटिकली प्रेशर डालेंगे, इनको समझाएंगे। तो इसलिए हिंदुस्तान थोड़ा हाथ रोक लेता था। अब अमेरिका का ऐसा कोई दबाव नहीं है। एक तो राष्ट्रपति की इलेक्शन हो रही है, ओबामा जा रहे हैं, ओबामा को कोई इंटरेस्ट नहीं। उन्होंने ड्रोन मार के तालिबान के हेड को मार दिया है, जो कि पाकिस्तान का खास पाला हुआ हेड मुल्ला मंसूर थे। तो वो भी तंग आ चुके हैं कि पाकिस्तान इस समय, उनको पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, इसीलिए ये रेजोल्यूशंस और प्रेशर आ रहा है। तो हिंदुस्तान के हाथ अब खुले हैं कि उस टाइम नहीं खुले थे। राजदीप, जिस लहजे में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कश्मीर का जिक्र किया, जिस लहजे में बुरहान वानी का जिक्र हुआ, जिस लहजे में हथियारों की होड़ का जिक्र हुआ, और जिस लहजे में एक संकेत है कि शायद साउथ ईस्ट एशिया में युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, अब भारत के सामने क्या ऑप्शन है? देखिए, पहली बात तो ये जान लीजिए प्रसून, हमें ये जानना चाहिए, जब हम टीवी स्टूडियो में आते हैं बड़ी आसान बात होती है, जैसे जनरल बख्शी कहते हैं जंग पे जाइए। दूसरी बात हम जान ले, हमें अच्छा लगे बुरा लगे, पाकिस्तान एक स्वतंत्र देश है। आज नवाज शरीफ का इशारा एक तरह से अपने डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी पर था। वो एक तरह से दिखाना चाहते थे कि वो भी यूएन में जाकर एक बड़ा तगड़ा भाषण कर सकते हैं। दूसरी तरफ वो चाहते हैं कि कश्मीर में कहीं ना कहीं वो एक तरह से आग छिड़का दे, वहां जो हिंसा हो रही है उसमें कहीं ना कहीं और भी हिंसा हो, ताकि पाकिस्तान को लगे कि उसे फायदा हो जाए, कश्मीर को इंटरनेशनलाइज करें। तो ये उनकी स्ट्रेटेजी है, रणनीति है, ये हमेशा रहेगी। केसी सिंह जी ने सही कहा है, स्थिति बदली है, दुनिया बदल रही है। वो आप नहीं कह सकती कि एक आतंकवादी फ्रीडम फाइटर होता है, दूसरा आतंकवादी जो है वो टेररिस्ट होता है। वो जमाना चला गया है। लेकिन मुझे लगता है यही, अगर भारत को कुछ करना है तो एक कोहेसिव पॉलिसी चाहिए। आप एक दिन जाते हैं और नवाज शरीफ को गले मिलते हैं और 9 महीने बाद आप कहते हैं कि हम शायद सार्क न जाए, अब हम जंग के लिए तैयार हैं। यह नहीं चलेगा। कहीं ना कहीं भारत को एक तरह से ठोस निर्णय लेना पड़ेगा, आप क्या करना चाहते हैं। और मैं समझता हूं कि कोई इस समय कोई मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं है। जनरल बख्शी भले हमारे से सीनियर है, वो मिलिट्री आदमी है, लेकिन मैं जर्नलिस्ट की हैसियत से कह सकता हूं, मुझे नहीं लगता, जिन लोगों में से मैंने सरकार में बात की है वो कहते हैं इस समय हम जंग नहीं कर सकते। तो आपको डिप्लोमेटिकली हैंडल करना पड़ेगा, पाकिस्तान को आइसोलेट करना पड़ेगा। शायद आप सार्क मीट कर ले बगैर पाकिस्तान के, कहे कि अब पाकिस्तान जो है वो एक तरह से पूरे सार्क के देश मानते हैं, टेररिस्ट स्टेट बन गया है, श्रीलंका मानने लगे, बांग्लादेश तो मानती है, अफगानिस्तान तो मानती है, चलिए माइनस पाकिस्तान हम एक सार्क समिट करते हैं। तो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं आप एम्बैरस करें, आइसोलेट करें, यह आपकी एक रणनीति हो सकती है। लेकिन अगर यह रणनीति रही तो आप ये जानिए, आतंकवाद तो थमने नहीं वाला है, हिंसा कश्मीर में थमने नहीं वाली है। क्या आप में वो मनोबल है कि आप लगातार पाकिस्तान को हर मोड़ पे उनको करारा जवाब दे सकते हैं? क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो देश आपके साथ है। लेकिन अगर आप रणनीति कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, कभी उत्तर प्रदेश के चुनाव पर आपकी आंखें होती है या किसी और वोट बैंक पर आंखें होती है, तो ये नहीं चलेगा। तो मुझे लगता है भारत को अब एक कंसिस्टेंट पॉलिसी लगानी पड़ेगी। सुषमा स्वराज जो भी बोले 26 तारीख को, असली हमारी परीक्षा रहेगी, क्या हम सार्क समिट जाएंगे? क्या प्रधानमंत्री ने अब कहा है कि हम पूरी तरह से पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करेंगे, या जैसे उन्होंने बलूचिस्तान का मुद्दा उठाया, हम पाकिस्तान को वही जवाब देंगे जिस तरह से पाकिस्तान ने कश्मीर में हरकत की है? यह सवाल सबसे बड़ा है। बलूचिस्तान के बारे में बोलना एक बात होती है, वहां वाकई जाके अगर आपको पाकिस्तान को अंडरमाइन करना है, क्या हम में वो क्षमता है या नहीं, इस पर अभी भी सवाल है। शहनवाज जी, हम आए आपके पास, जेडी बख्शी साहब आते हैं, लेकिन शहनवाज जी से एक पॉलिटिकल जवाब ले लें। डिटरेंस का मतलब क्या ये मान लिया जाए कि सेना हमारे पास है लेकिन वो काम नहीं करेगी, यानी वो एग्रेसिव एक्शन की दिशा में नहीं बढ़ेगी? डिटरेंस का मतलब क्या ये मान लिया जाए कि डिटरेंस ही हमारी मजबूरी और जरूरत हो गई और यही हमारी स्ट्रेटजी है, इस दिशा में भारत बढ़ रहा है? या आपको लग रहा है जिस कोहेसिव
नेस की बात कर रहे हैं राजदीप कि उस रूप में आपके पास एक पॉलिसी होनी चाहिए, वो पॉलिसी मिस कर रही है, क्या इससे इनकार है शहनवाज जी? देखिए, पॉलिसी मिस नहीं कर रही है। भारत एक बड़ा देश है और हमने कोशिश ऐसी की है कि हम रिश्तों को अच्छा करें। ये कोशिश हर सरकार ने की है, हमने भी की है। लेकिन अगर पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है तो हमने अपनी पॉलिसी का एक और भी रुख है, और पूरे दुनिया में उसको आइसोलेट करना, पूरे दुनिया के अंदर पाकिस्तान को बेनकाब करना। जिस तरह नवाज शरीफ ने बुरहान वानी को जो AK-47 लेकर पोस्ट करता था फोटो पर, उसको आतंकी नहीं बता के उसको वहां का हीरो बताना, तो पाकिस्तान तो खुद शहनवाज जी आप अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री थे, हम शहनवाज जी जरा एक मिनट सुन राजदीप जो कह रहे हैं, आप एक मिनट सुन तो लीजिए। शहनवाज जी, आप वाजपेयी मंत्रिमंडल में मंत्री हुआ करते थे। वाजपेयी जी ने संयुक्त राष्ट्र में ISI का नाम लिया था। अब आप बताइए, पठानकोट पे हमला होता है और ISI का अधिकारी पठानकोट एयरबेस पे जाके GIT ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम आती है, उसमें निरीक्षण कर रहा है, और वो मार्च का महीना और आज हम सितंबर में खड़े हैं। इस तरीके से चेंज कैसे हो सकती है हमारी पॉलिसी? और इस निरीक्षण, ये सवाल एक हमारे मुखालफिन ने ऐसा प्रचारित किया जैसे हमने ISI को बुला लिया। यकीनन जो देश की राजनीति करने वाले लोग हैं, जो मुल्क के नाम पर और इंडिया पाकिस्तान के नाम पर भी राजनीति कर लेते हैं, वो इस तरह का प्रचार कर रहे हैं। हमने उनसे कहा कि आप वहां ये हमला हुआ, उन्होंने मजम्मत की, प्रधानमंत्री, दोनों प्रधानमंत्री की बात हुई, उन्होंने कहा कि नहीं, इस पर एक्शन लेंगे, हम अपनी टीम बुलाएंगे। उन्होंने अपनी टीम के अंदर कहा कि हमारे यहाँ से जो इंटेलिजेंस के लोग हैं वो भी जाएंगे और जाकर देख के आएंगे। बात इतनी हुई, हमने उनके यहाँ ISI नहीं बुलाई, तो हम क्या उनके होमगार्ड बुला लेते? उनकी टीम आई, उनकी टीम के अंदर कौन लोग आए, इस पर देश के अंदर जरूर राजनीति होने लगी। हमारा सवाल यह है कि क्या चाहते हैं। मान लीजिए राजदीप कह रहे हैं कि JD बख्शी साहब के युद्ध के फॉर्मूले से सहमत नहीं है, दूसरी तरफ कह रहे हैं डिप्लोमेसी भी होनी चाहिए। तो हम तो डिप्लोमेसी कर रहे हैं। डिप्लोमेसी के तौर पर हमने पूरी दुनिया में पाकिस्तान को अलग थलग करने की पूरी कोशिश की है और हम उसको कर भी रहे हैं। तो अभी जो सरकार की तरफ से जिस तरह हम पर हमले हुए हैं, हम उसका जवाब दे रहे हैं। पूरे दुनिया में जो देखिए 2002 के अंदर भी हमने पाकिस्तान को पूरी तरह से किनारा किया था। ठीक है, अमेरिका की मजबूरी थी, अमेरिका उस वक्त अफगानिस्तान में लड़ रहा था, उसकी आर्मी पूरी तरह पाकिस्तान के बेस का इस्तेमाल कर रही थी। आज के माहौल अलग हैं, लेकिन हमारी सोच पहले भी वही थी कि पाकिस्तान से जिस भाषा में वो समझता उसमें बातचीत की जाए। मैं टेलीविजन इंटरव्यू में ये हक नहीं रखता कि मैं कह दूं कि हमारी सरकार कल क्या करने वाली है। नहीं, हम ये कह भी नहीं रहे हैं आपसे, हम ये चाह भी नहीं रहे हैं कल क्या होने वाला है, ये आप कह दें या हम ये नहीं कहने जा रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, सवाल सिर्फ इतना है जो केसी सिंह जो आपने जिक्र किया, आपके चैनल के जरिए देश को एक संदेश जाना चाहिए जी कि पूरे देश के लोग एक हैं इस मुद्दे पर। नहीं, आप एक की बात कह रहे हैं, पूरा देश ही एक है, इसमें बोलने की क्या जरूरत है? ये बोलने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। JD बख्शी साहब, केसी सिंह ने कहा पाकिस्तान अगर मिसरीड कर रहा है भारत को तो फिर युद्ध की नहीं, अपनी सेना पे भरोसा कीजिए, अपनी सरकार पे भरोसा कीजिए, और अगर भरोसा तोड़ना है तो पाकिस्तान से भरोसा तोड़िए। नहीं, ठीक है, आप अपनी बात कह दी आपने, हमारी सहमति है जो आप कह रहे हैं। अब JD बख्शी साहब ये बताइए, केसी सिंह साहब कहते हैं पाकिस्तान मिसरीड करेगा भारत को तो जवाब मिल जाएगा। हमारा कहना है हम अपने तरीके से पाकिस्तान को भी मिसरीड कर रहे हैं, जिसका पठानकोट का हमने जिक्र किया। क्या हमारी सिचुएशन JD बख्शी साहब ऐसी है, या आप सिर्फ सोच रहे हैं कि नहीं अटैक हो जाना चाहिए, उसके बाद स्थिति खुद पटरी पर आ जाएगी? देखिए, मैं सिर्फ आपको कहना चाहता हूं कि हम 30 साल से वही करे आ रहे हैं जो आज हमारे मित्र राजदीप सरदेसाई कह रहे हैं या कई और लोग कह रहे हैं कि कुछ मत करो, पाकिस्तान को पूरी छूट दो, लीव द इनिशिएटिव एंड द पहल पाकिस्तान के पास छोड़ दीजिए कि जब वो चाहे, जहां वो चाहे, जिस पोस्ट पर वो किसी चाहे, ने ये नहीं कहा, कैजुअलिटी करे, कोई युद्ध नहीं होगा। किसी ने ये नहीं कहा सर, झूठ मत बोलिए सर। नहीं, एक मिनट ठहर जाइए, लेट मी कंप्लीट। और अगर हम रिटेलिएट करते हैं साहब तो आग बरस पड़ेगी हमारे ऊपर, न्यूक्लियर बमों की बरसात हो जाएगी, झड़ी लग जाएगी। मैं कह रहा हूं, प्लीज थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। आपके ऊपर ये दायित्व है कि आप पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी का तोड़ निकालें।
the war of bleeding you with 1,000 cuts. आप क्या कहना चाहते हैं राजदीप? Do you want to say we should bleed forever and ever and ever because we cannot take any concrete action to raise कौन कहता है? पाकिस्तान? कौन कहता है? Find out ways to raise cost for कौन कहता है? पर आपको यूथ के अलावा कई और मेजर्स ले सकते हैं। आप यूथ के अलावा कई और मेजर्स ले सकते हैं। आप यूथ की बात क्यों करते हैं? तो मैं आपको कह रहा, मसलन आपकी आर्मी प्रिपेयर्ड है यूथ के लिए? आपको लगता है कि उस तरह की मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस है कि एक तरह से यूथ होनी चाहिए? उसकी क्या इकोनॉमिक फॉलोआउट होगी? अच्छी तरह से प्रिपेयर्ड है। पाकिस्तान कितना प्रिपेयर्ड है राजदीप? पाकिस्तान कितना प्रिपेयर्ड है बताइए सर? आप ये पाकिस्तान, आपको लगता है कि आज की तारीख में एक फुल ब्लोन वॉर हो सकती है? क्या आपको लगता है कि दो न्यूक्लियर नेबर्स के बीच में एक फुल ब्लोन वॉर होनी चाहिए? क्या आप वाकई समझते हैं ये सही डायरेक्शन है या और मेजर्स करने चाहिए? आप एस्केलेट करिए ना, वॉर शुड बी लास्ट ऑप्शन। आप शुरू करिए, एस्केलेट करिए। now फिर now राजदीप, वी आर सेइंग द सेम थिंग। किसने कहा है कि आप पूरे दर्जे की लड़ाई करिए? वी आर टेलिंग यू that between the spectrum of low intensity conflict, Rajdeep, and full scale nuclear war, there are many rungs in the escalation ladder. Please start on those rungs. We will see how far to go. We can take a call. There are many rungs in the escalation ladder. Please start on those rungs. जो आप कह रहे हैं उसके लिए एक पॉलिटिकल लीडरशिप लगेगी जो ये रिस्क लेने के लिए तैयार है। आप जो कह रहे हैं उसमें बड़ा रिस्क है, ये आप भी जानते हैं। क्या आपको लगता है वाकई हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है आज की तारीख में वो रिस्क लेने के लिए तैयार है या नहीं? यह भी सवाल उठता है, पॉलिटिकल विल का सवाल है इसमें। Rajdeep, political will का सवाल है इसमें। Good question, Rajdeep. The political leadership, the military leadership is on test. Good question, Rajdeep. आरपीएन, हम इस बात को अब आपके पास लेकर आते हैं। क्या पॉलिटिकली इस देश के भीतर सहमति बनेगी? प्राइम मिनिस्टर मोदी अगर निर्णय कोई लेते हैं, जिस बात का जिक्र जीडी बख्शी साहब कर रहे हैं, और आपको लगता है कि उसके टेस्ट का वक्त आ गया है अब? प्रसून जी, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा कहा है कि अगर ये सरकार नेशनल सिक्योरिटी पे कोई भी मीनिंगफुल रास्ता निकालती है, कांग्रेस पार्टी नहीं पूरा देश उनके साथ खड़ा मिलेगा और हमारी पार्टी अवश्य खड़ा मिलेगी। परंतु नियत होनी चाहिए और मैं समझ सकता हूं कि सोच होनी चाहिए। और जो शहनवाज भाई ने कहा बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान को आइसोलेट करने की जरूरत है। हमने 26/11 के बाद पाकिस्तान को आइसोलेट किया, पूरे देश ने देखा और दुनिया ने देखा। परंतु वो आइसोलेशन से कैसे बाहर निकला? क्योंकि हमारी नीति में कुछ फर्क हुआ। क्यों हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनको हिंदुस्तान पे बुलाया? क्यों हमारे प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान गए और मौका दिया पूरे देश और पूरे दुनिया में दिखाने के लिए पाकिस्तान को, जहां हमने उस कोने में एक आतंकी देश को साबित किया था, उस पिंजरे से निकालकर उन्होंने हमारे बरोबर खड़ा कर दिया। तो मैं समझ सकता हूं जहां तक नीति है वो नीति होनी चाहिए। और एक चीज स्पष्ट कहना चाहता हूं मैं, हम विपक्ष में हैं। अगर हम विपक्ष में हैं, हम सरकार के साथ खड़े हैं। और अगर विपक्ष में होते हैं, कोई भी पार्टी अगर विपक्ष में होती है तो गैर जिम्मेदारी वाले भाषण नहीं देने चाहिए, क्योंकि जब आप सत्ता में आते हैं आप ही को सताने के लिए फिर से वो खड़े हो जाते हैं। हमने हमेशा कहा है और आपके चैनल के माध्यम से फिर से मैं कहना चाहता हूं, कोई भी नेशनल सिक्योरिटी में मीनिंगफुल रास्ता ये सरकार उठाएगी, हम उसके साथ हैं, पर नीति और नियत साफ होनी चाहिए। बार बार केसी सिंह साहब, एक मीनिंगफुल सिचुएशन में प्राइम मिनिस्टर मोदी कहीं ना कहीं सामने हर किसी को खड़े नजर आ रहे हैं, जिसमें कई डायवर्शन है। हम 1 मिनट ले रहे हैं शहनवाज जी, आपसे हम जवाब लेंगे, लेकिन हम चाहते हैं केसी सिंह साहब, अरे आप इस तरीके से पॉलिटिकल डिबेट में मत कन्वर्ट हो जाइए ना। जवाब जो इन्होंने बोला बात आप डाइवर्ट कर देंगे। नहीं, हम बिल्कुल डाइवर्ट नहीं करेंगे। आप अपने दिमाग में रखिए, हम भी अपने दिमाग में रखें। उन्होंने पॉलिटिकल बात कही, हम जवाब भी न दें।
चलिए दीजिए। उन्होंने सीधे क्या कहा, उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री पे इल्जाम लगाया। आप हमारे जवाब को नहीं लेके केसी सिंह जी के पास जा रहे हैं, फिर कर रहे हैं हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हम प्रधानमंत्री जी में कहा जवाब लग बोल लीजिए, हम आप रुके बताइए हुए हैं हम क्या शहनवाज politics जी, कर रहे हैं इसमें? पूरी रात आज बैठे हुए हैं, बोल लीजिए जितना बोलना है। नहीं, इन्होंने कहा, अब उन्होंने कहा जवाब दीजिए। आप नहीं हम डिस्कशन, रुके, आप हम पर पॉलिटिकल एहसान मत डिस्कशन करना कीजिए। चाहते हैं आप। अगर आपको आज के लगता है दिन मैं एक गलत आवाज बोल रहा हूं में तो मैं बोलिए। नहीं बोल रहा हूं। सर कम से कम आज के दिन शाहनवाज जी और नहीं करना आरपीएन सिंह चाहते। जी एक आवाज इन्होंने में कहा बोलिए। कि अब 26/11 के बाद पॉलिटिकल नहीं, किसी वजह से मैं नहीं आप कह रहा कमजोर हूं। लगते अरे हैं। आप मैं लोग तो एक हमें ही आवाज नसीहत में दे बोल रहे रहा हैं, हूं आरपीएन साहब। सिंह को नहीं कह रहे। कोई भी नहीं, नहीं- पॉलिटिकल जवाब दे दीजिए, राजदीप एक मिनट पॉलिटिकल जवाब देने दीजिए यार, मैं एक लाइन में जवाब एक मिनट देना राजदीप। चाहता हूं। हाँ शहनवाज जी, एक पॉलिटिकल लाइन जवाब में, एक दीजिए। लाइन में शाहनवाज जी 26/11 एक के लाइन में बाद जवाब दे रहे मोदी हैं। जी ने हम political, हम सरकार पर non-political नहीं हैं। बयानबाजी की थी जो गलत था। अब वो भाई, स्थिति बदल गई मैंने है। यही कहा, बयानबाजी की थी, गलत था। शहनवाज जी अब पूरा तो जवाब सरकार दीजिए में पहले, है, आप अभी पॉलिटिकल जवाब दे सरकार में दीजिए, एक जिम्मेदारी आती है और विपक्ष की भी जिम्मेदारी है। पॉलिटिकल जवाब अभी- दीजिए, मैं पूरा जवाब दूंगा। मैं भूमिका नहीं, जवाब दीजिए। ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हूँ, आपने मुझे बुलाया है। फिर भूमिका, जवाब मेरी दीजिए। प्रधानमंत्री पर या पार्टी पे फिर कुछ भूमिका, होगा तो जवाब मैं दीजिए। जवाब दूंगा। आप भी भूमिका मत लीजिए, मुझे जवाब मौका दीजिए सीधा। आप ऐसा नहीं होगा कि कांग्रेस बोले और आप दूसरी तरफ जवाब चले दीजिए, जाएं, अगले जवाब 15 दीजिए। मिनट आप ही के पास है, सवाल जवाब ये है दीजिए। कि आरपीएन सिंह ने कहा कि 26/11 के बाद नहीं, अगले मेरे पे एहसान मत कीजिए, मैं जवाब दे रहा हूं। आरपीएन सिंह ने कहा कि 26/11 के बाद हमने पाकिस्तान को आइसोलेट किया, आपने पाकिस्तान के पीएम को बुला लिया। जवाब आरपीएन सिंह से लीजिए कि 26/11 के बाद शर्मल शेख में इनकी सरकार ने यू टर्न किया जाकर, इनकी सरकार ने शर्मल शेख में क्या बात की, उस पर चर्चा कीजिए। 26/11 के बाद बीच में शर्मल शेख भी है, यही बात मैं याद दिलाना चाहता था। 15 मिनट क्या, मैं तो 1 घंटा बोल सकता हूं पाकिस्तान के खिलाफ और पूरे कश्मीर की पॉलिसी के खिलाफ। सवाल यह है कि आप 26/11 के बाद आप हमें इल्जाम दे रहे हैं, शर्मल शेख में आपने किसके दबाव में जाकर बात कर ली थी, यह सवाल पूछना चाहता हूं। आरपीएन सिंह जवाब दें इसका। दीजिए भाई आरपीएन सिंह जी। आइसोलेशन की बात हो रही थी, अगर हम बिल्कुल दे रहे हैं प्रसून जी, 26/11 के बाद हमने विश्व में पाकिस्तान को आइसोलेट किया था या नहीं किया था, इसका जवाब पूरा देश और दुनिया जानती है कि हमने आइसोलेट किया था। वो आइसोलेशन से कब निकले, जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यहां आते हैं, जब प्रधानमंत्री, हम देखिए हमने बिल्कुल साफ कहा है कि हम पाकिस्तान के खिलाफ हमने हमेशा लड़ा है। 65 भी हम ही लड़े थे, 71 में भी हम लड़े थे और 2002 में जब प्रधानमंत्री वाजपेयी जी थे उनके साथ भी हम कंधे से कंधे खड़े होकर लड़ रहे थे। और जब 26/11 हुआ था तो आप हमारे साथ नहीं खड़े थे। आप 26, अरे शर्मल शेख से पाकिस्तान और उसके आतंकी, मैं बिल्कुल नहीं, अरे बातचीत शुरू की, उनके विदेश मंत्री अजमेर आए, आपने अजमेर जयपुर में आपके विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद मिले थे कि नहीं मिले थे? क्यों देश अरे उनके प्रधानमंत्री कभी इस देश में आए? अरे प्रधानमंत्री, अरे यार के बाद, अरे आप देश से बयान करिए, क्या हमारा प्रधानमंत्री कभी पाकिस्तान गया? क्या हमारे प्रधानमंत्री कभी पाकिस्तान गए? क्या हमारे प्रधानमंत्री कभी पाकिस्तान गए शादी में, किसी ऑफिशियल फंक्शन में? आप कैसे चले गए? सोलो साड़ी बांटते हैं वहां और आप भाषण देते हैं, भाषण देते हैं। आप कैसे चले गए शादी में वहां चले गए? शादी में क्या करने गए थे पाकिस्तान? और क्या हिंदुस्तान को पानी मिला? पठानकोट के बाद आईएसआई कैसे आ गया इस देश में? पठानकोट में आईएसआई इस देश में आता है? अरे पठानकोट के बाद आईएसआई इस देश में आता है? के बाद शर्मल शेख में बात, पठानकोट के बाद आईएसआई इस देश में जांच करने के लिए बुलाते हैं क्यों शुरू की? और आप पाकिस्तान में भरोसा करते हैं? पाकिस्तान के एक स्वर में राजनीति बात नहीं कर सकते और नवाज शरीफ को बोलकर चले गए। हमें नवाज शरीफ को रिस्पांस देना है या एक दूसरे को रिस्पांस देना है? अमेरिका के दबाव में बातचीत शुरू की आपने जयपुर में पाकिस्तान के विदेश मंत्री सर एक स्वर में बात कीजिए आरपीएन और शाहनवाज जी, कम से कम शाहनवाज और आरपीएन सिंह जी आज के दिन पर एक स्वर में बात कीजिए, कम से कम आज के दिन पर एक स्वर में बात कीजिए। नवाज शरीफ, कश्मीर और बुरहान वानी सवाल है,
26/11 और शर्मल शेख के बीच में आप लड़ाई क्यों करते हैं? नहीं राजदीप, हमें लगता है इस देश का सच जो है, पॉलिसी और नहीं राजदीप, मसला हंगामे का नहीं है, इसलिए तो नहीं राजदीप नवाज शरीफ पे बातचीत एक स्वर में कैसे करेंगे राजदीप? पिछले 30 बरस से हिंदुस्तान देख रहा है, हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। नहीं राजदीप, इसका कोई मतलब नहीं है। हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स पिछले 30 बरस से देख रहे। अब जीडी बख्शी साहब, आप जवाब दीजिए। आप जिस एक्शन की बात करते हैं, दो पॉलिटिकल लीडर यहां बैठे हुए हैं और दोनों की सहमति इस बात को लेकर नहीं है कि पाकिस्तान के साथ कैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए या किस रूप में दोनों ने किया है। अब आप बताइए, आप किस एक्शन की बात करते हैं जीडी बख्शी साहब? नहीं प्रसून जी, मैं बीच में बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, जैसे मैं आपके चैनल पे शुरू से कह रहा हूं, नेशनल सिक्योरिटी के मैं इस देश में काफी घूमता हूं, मैं स्कूल के, मैं प्लीज, अरे आरपीएन सिंह साहब जरा किसी और को बोलने का हक देंगे आप? शुरू से कह रहा हूं, अरे बख्शी जी, आप भी दे दीजिए किसी को बख्श। बच्चों से बात करता हूं। अरे आरपीएन सिंह साहब जरा किसी और को बोलने का हक देंगे आप? प्लीज देखिए, मैं कह रहा हूं कि जितना आक्रोश मैंने देखा है इस देश में आज के दिन, जितना गुस्सा है, हमारे सब्र का बांध लोगों का टूट चुका है। हर बारी हमारी उम्मीदें उठाई जाती हैं कि साहब अब की बार आर या पार, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अभी तक चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, हमने वो होता नहीं देखा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अब वो वक्त आ गया है जब एक सिग्निफिकेंट थ्रेशोल्ड ऑफ टॉलरेंस क्रॉस हो चुका है। एक बहुत सिग्निफिकेंट जो टॉलरेंस का थ्रेशोल्ड ब्रीच हो चुका है, और मुझे पक्का यकीन है कि हमारी जो कार्डर बेस्ड पार्टियां हैं वो ग्रास रूट से टच में हैं। और अगर आपको ये आक्रोश समझ नहीं आता तो आप बहुत भारी भूल कर रहे हैं। मैं नहीं समझता इतनी बड़ी भूल ये कार्डर बेस्ड पार्टी करेगी। You should be in touch with the grassroots feeling, and those internal dynamics will propel you to take strong action. मुझे ये मेरा विश्वास है। और जब एक बारी आप एक्शन ले लें, 1971 में मैडम ने एक्शन ले लिया, कॉन्सिक्वेंसेस अपने आप ठीक होंगी, दुनिया लाइन अप हो जाएगी। आप जरा महाशक्ति हैं आप। You see, in the Bismarckian context, a great state was decided by one litmus test. Could it take the decision to go to war on its own without looking over the shoulder at America or Russia or China? आप एक ग्रेट पावर हैं, प्लीज बिहेव लाइक वन। आप करेंगे, अपने आप नेशनल कंसेंसस आपके पीछे आएगा, ग्रास रूट से पुश आपको मिलेगा, और वो पुश इस वक्त है। मुझे पक्का यकीन है कि सर, आक्रोश को लेकर आप लड़ाई नहीं कर सकते। बख्शी जी, आक्रोश के बेसिस पर आप लड़ाई या पॉलिसी नहीं कर सकते। आपको ये पॉलिसी जो है थोड़ी मैच्योरिटी, थोड़ी सूझबूझ, थोड़ी जिम्मेदारी के साथ करनी पड़ेगी। पूरा देश प्रधानमंत्री के साथ रहेगा, गवर्नमेंट के साथ रहेगा, लेकिन केवल आक्रोश को लेकर आप अपनी पॉलिसी नहीं बना सकते। ये मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटेजी करनी पड़ेगी। केवल आक्रोश को लेकर नहीं कह सकते कि आज हम जंग पर जाएंगे। हमें थोड़ी इसको रिस्पॉन्सिबली लेकर, इसको बड़ी समझबूझ के साथ इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। नहीं राजदीप, क्योंकि टीवी में मैं बार-बार कहता हूं, बड़ा आसान होता है कहता कि हम जंग पर जाएंगे। राजदीप, आप लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि मल्टी प्रोलॉन्ग एक स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, कोहेसिव पॉलिसी रहनी चाहिए। तो क्या आर पार का जिक्र वाजपेयी ने किया, 26/11 के वक्त मनमोहन ने किया, इस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से ये आवाज आ रही है, उन्होंने कुछ रिएक्ट नहीं किया, लेकिन ये आवाज गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है। तो क्या ये सिर्फ कहा जा रहा है, सिर्फ ये कहा जाता है, बड़े ठंडे दिमाग से काम कर रहे हैं? इसका मतलब है सिर्फ ये बातें कही जाती हैं, ये कोहेसिव स्ट्रेटजी कुछ नहीं है? बिल्कुल वही तो है। आपने देखा है पिछले 30-40 साल में क्या हमारी स्ट्रेटेजी रही है पाकिस्तान के साथ। हम एक दिन कहते हैं कि हम साड़ी शॉल के साथ उनके साथ खाने पर बैठ जाते हैं, और दूसरे दिन हम कहते हैं कि हम लड़ाई पर उतर आएंगे। ये कैसे चलेगा? हमें एक बार ठोस निर्णय लेना है कि क्या हम क्या चाहते हैं। और ये जानिए, पाकिस्तान की आर्मी भी बहुत बड़ी आर्मी है, वो एक न्यूक्लियर नेबर है, हम बार बार कहते हैं।
हम क्या चाहते हैं। और अगर हम समझते हैं कि केवल जंग इस पर करेगी, जीडी बख्शी जी कहते हैं आक्रोश है देश में, हाँ जरूर आक्रोश है, लेकिन आक्रोश के बेसिस पर कोई भी देश, कोई भी जिम्मेदार देश केवल आक्रोश पर अपनी पॉलिसी नहीं बना सकता है। मैं नहीं, घुटने कौन टेक रहा है? नहीं, कौन कह रहा है घुटने टेकिए? आपके पास कई उपाय हैं। आप जैसे आप कर रहे हैं, धीरे धीरे पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करिए, उनको सार्क से निकाल दीजिए, अगर आप चाहें करिए। अफगानिस्तान की मदद से, बांग्लादेश की मदद से आप पाकिस्तान को सार्क से हटाइए। आप स्टेप बाय स्टेप करिए। आज ही आप कह रहे हैं कि देश में इतना आक्रोश है कि चलिए जंग पर चलिए, ये कैसे हो सकता है? डोंट गिव अस मोर ऑफ द सेम फॉर गॉड सेक, डोंट गिव अस मोर ऑफ द सेम। 30 साल से आइसोलेशन। अरे सर, 30 साल से कई सरकारें रही है, कांग्रेस की रही है, बीजेपी की रही है, तो आपको लगता है कि आपको लगता है कि जंग से सब मामला सुलझ जाएगा? आज की तारीख में जहां कोई भी एक टेररिस्ट जो है वो कुछ भी कर सकता है, फिदाइन स्क्वाड्स है, और आप कह रहे हैं जंग के द्वारा पूरा मसला सुलझा जा सकता है। कश्मीर का मसला, क्या आपको लगता है कश्मीर का मसला जंग से सुलझा जा सकता है? वाकई आपको लगता है? राजदीप सर, आप मुझे बताइए, एज एन इंडियन, प्लीज बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। सर प्लीज बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। हैज डिप्लोमेसी। सर, मैं भी इंडियन हूं सर, आप ये मत करिए। नहीं सर, हम सब देशभक्त हैं सर। आपको कोई नई इनोवेटिव आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया सोचनी पड़ेगी। जब तक आप सोचे नहीं, तब तक आपको एक तरह से अपनी स्ट्रैटेजी, रणनीति बनानी पड़ेगी, उसके बाद आप कर सकते हैं। हमारी रणनीति नहीं होती, अटैक होता है उसके बाद हम कुछ प्लान करते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? हमें प्रियम्प्ट करना पड़ेगा अटैक्स के लिए। एस्केलेशन लैडर्स। जी, आप समझ रहे हैं डीजीएमओ कुछ नहीं कर रहे इस वक्त, तो तो हम समय दीजिए ना, वही मैं कह रहा हूं, समय दीजिए। हम चाहते हैं कि तुरंत कोई एक्शन हो। देश में जो आक्रोश है वो चाहता है तुरंत। हमें थोड़ा समय देना पड़ेगा। जैसे प्रसून जी ने कहा, सब जो लीडर है वो कहते हैं आर पार की लड़ाई। आर पार की लड़ाई के लिए स्ट्रैटेजी की जरूरत होती है। हमारे पास स्ट्रैटेजी है या नहीं? You will have to use kinetic force. नहीं, जेडी बख्शी साहब, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, आप कहते हैं काइनेटिक फोर्स। एक मिनट, जेडी बख्शी साहब, जिस बात का जिक्र आप लगातार गुस्से का जिक्र कर रहे हैं, हमको लगता है कि 2014 के इलेक्शन से ठीक पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी जब प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे, उस समय की अगर भाषणों को निकाल के देखिए, आपसे ज्यादा वो गुस्से में थे उस वक्त कि किस तरीके से मनमोहन गवर्नमेंट ट्रीट करती है पाकिस्तान को लेकर, क्या कुछ नहीं कहा गया था। तो जाहिर है इस देश के भीतर मौजूदा वक्त में गुस्सा जेडी बख्शी साहब इसलिए भी है कि एक प्राइम मिनिस्टर उन चीजों को कहकर आया यहां तक, और इसलिए गुस्सा आपके भीतर भी हो सकता है कि अभी तक कुछ क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन एक सवाल तो है कि क्या वाकई हमने हर फ्रंट को इतना मजबूत किया है या नहीं किया है। हमको लगता है हम लोग यही डिस्कशन कर सकते हैं। हो सकता है कल प्राइम मिनिस्टर मोदी डिसीजन ले लें स्ट्राइक का, हम आप लोग यहां डिस्कशन ही करते रहे, हो सकता है ये। लेकिन सवाल है डिस्कशन हर फ्रंट पे क्या है। गुस्सा है देश के भीतर, ये सही है, हर कोई देशभक्त है, ये सही है, लेकिन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, जिस रूप में होनी चाहिए, नहीं हो पाई है बीते 30 वर्ष में। ये एक सच है जेडी बख्शी साहब। इसलिए एक्शन, डिप्लोमेसी और सारी चीजें एक फ्रंट पे एक साथ चलनी चाहिए। आपको लग रहा है, हम आपका रिएक्शन चाहते हैं, क्या आपको लग रहा है चल रही है, या आपको लगता है कि अटैक होगा तो चलने लगेगी? क्या लगता है? चलनी चाहिए, आपको लग रहा है, हम आपका रिएक्शन चाहते हैं, क्या आपको लग रहा है चल रही है, या आपको लगता है कि अटैक होगा तो चलने लगेगी? देखिए, मैं कहना चाहता हूं, मेरे में 37 साल का सेना का तजुर्बा है। इट हैज टू बी अ होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच। केसी सिंह साहब, मेरे जैसे जर्नल, एयर मार्शल, नेवल एडमिरल्स, पॉलिटिशियंस इकट्ठे काम करेंगे एज अ टीम, और आप जब इकट्ठा एकजुट होकर काम करना शुरू करें, साइनर्जी जनरेट अपने आप होती है। अ क्राइसिस क्रिएट्स अ चैलेंज विच अनलीशेस अ क्रिएटिव रिस्पॉन्स। ये क्रिएटिव रिस्पॉन्स का वक्त आ गया है। आप इकट्ठे एकजुट होइए, एक मंशा बनाइए, एक विचार बनाइए, एंड देन गो फॉर इट। यू आर अ बिग नेशन स्टेट। आप कोई ऐसी वैसी बनाना यही बातें जीडी बख्शी ने पठानकोट के बाद कही थी। यही बातें आपने पठानकोट के बाद कही थी। बख्शी जी
बख्शी जी, यही बातें आपने पठानकोट के बाद कही थी। मेरा यह कहना है कि ये बातें और इस तरह आर पार की लड़ाई की जो बातें होती है वो हर इस तरह के टेरर अटैक के बाद होती है। 26/11 के बाद हुई, जब बंबई में ट्रेन ब्लास्ट हुआ। नहीं, पर वो स्ट्रैटेजी क्या है सर? लेकिन क्या वो स्ट्रैटेजी, तो कम से कम हमने एक प्लान होना चाहिए। वो प्लान के लिए हम प्रिपेयर्ड होने चाहिए। देश को आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, ऑपोजिशन को प्रिपेयर करना पड़ेगा, सरकार को प्रिपेयर करना पड़ेगा। केवल यह कहना कि देश में आक्रोश है इसलिए अब कुछ करना है, इससे नहीं चलेगा। कहां है वो प्रिपरेशन, कहां है वो स्ट्रैटेजी, कहां है वो मिलिट्री लीडरशिप जिसके साथ पॉलिटिकल लीडरशिप काम कर सके और जिसके साथ हम कह सके कॉन्फिडेंस से कि हम इस तरह की जंग कर सकते हैं। ये जानिए सर, केवल ये टीवी पर आना और रोज रोज कहना चलिए जंग करते हैं बगैर प्रिपरेशन के कैसे होगा? ये कहीं ना कहीं हमें कुछ इस पर फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। वो आपकी लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप इस वक्त काम कर रही है जो टास्क उसे दिया गया। आप प्लीज इतना मत गिरा हुआ समझिए अपने आर्म्ड फोर्सेस को। आप इतना मत आप खराब समझिए अपने आर्म्ड फोर्सेस को। 37 साल से मैं भी जानता हूं उनको, और मैं आपको क्या हुआ है सर? खराब नहीं कोई कह रहा है। क्या हुआ है? पॉलिटिकल लीडरशिप हो या मिलिट्री लीडरशिप हो, क्या किया है उन्होंने? सर मेरा यह कहना है कि 30 साल में कौन सी आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन आपने दुनिया के सामने रखी है? 30 साल से ये हो रहा है। में जब मैंने सेना की सर्विस शुरू करी थी, हम लोगों ने पाकिस्तान को 2 टुकड़े किए थे। मेरी जनरेशन लड़ी हुई है। जी, तो आप कह रहे हैं कि अब जो बांग्लादेश में हुआ था वही करने का समय आ गया है, वही आप कह रहे हैं। उसके लिए मैं कह रहा हूं प्रिपरेशन होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। मैं नहीं देख रहा कि पॉलिटिकल लीडरशिप में वो विल है, वो काबिलियत है, या मिलिट्री लीडरशिप पूरी तरह से तैयार है। सच्चाई ये है। स्ट्रैटेजी सब है, कंटिंजेंसी प्लानिंग सब हुई पड़ी है राजदीप। केसी सिंह साहब, हमको लगता है केसी सिंह साहब, एक मिनट जेडी विकास एक मिनट, जिस बात का जिक्र हो रहा है केसी सिंह साहब, क्या पॉलिटिकल विल का मसला है सिर्फ, या स्ट्रेटजी की कमी है, या वाकई जिस तैयारी का जिक्र केसी सिंह साहब लगातार हो रहा है वो नहीं हमारे पास? हम कहां फंसे हुए हैं? क्योंकि अलग अलग सबकी जमीन है और उस जमीन पे खड़े होकर आखिर में पॉलिटिकल डिसीजन इस देश में फेस वही है, डिसीजन वहीं से लिया जाना है। तो क्या फेलियर स्थिति बनती चली जा रही है, या डिटरेंस का मतलब फेलियर हो गया है? केसी सिंह साहब, इसमें खतरा है। जो राजदीप ने बात कही है, एक सरकार एक आ गई है जो अंग्रेजी में शब्द है रिटोरिकल ट्रैप। अगर आप रेटरिक यूज करिए जाओ, और अभी इकोनॉमिस्ट में कवर आया था कि हम पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड में हैं। इस टाइम सोशल मीडिया का एक क्लोज साइकिल है। वो क्लोज साइकिल में जो सोशल मीडिया के उभार उठता है, आप समझते हो सारा देश इसके साथ है। हर एक का अपना सोशल मीडिया का एक साइकिल बन गया है। वो सोशल मीडिया ड्रिवन पॉलिसी तो सरकार की नहीं हो सकती। और ये सोचना कि मिलिट्री सोल्यूशन ही हर एक चीज का होगा, तो अमेरिका का आप देख लीजिए, हम अमेरिका से स्ट्रांग पावर तो है नहीं। वो अफगानिस्तान में आए, इराक में आए, उसके बाद वापस चले गए, वहां भी नुकसान किया, अपना भी नुकसान कराया। टेररिज्म तो खत्म नहीं हुआ। अब पाकिस्तान में मार भी देंगे, उनकी फौज को भी मार देंगे, तो टेररिज्म तो खत्म नहीं होगा। टेररिज्म तो अभी भी चल रहा है। वो तो बैकवर्ड एरिया जो है अफगानिस्तान का, वहां पे ब्रू हो रहा है। आरपैक एरिया में तो चेंज नहीं हो जाएगा। ये तो रेडिकल इस्लाम की लड़ाई है, जो सोच की लड़ाई है। ये सोच की लड़ाई तो बीजेपी नहीं सोच रही, ये सिर्फ डंडे की लड़ाई सोच रही है। चाहे वैली में हो, चाहे पाकिस्तान के साथ हो, दोनों तय पे चलना पड़ेगा। सोच पे भी चलना पड़ेगा और ताकत से भी चलना पड़ेगा। नहीं तो जॉर्ज बुश की तरह आप सारा अपना खर्चा करके, नुकसान करके घर चले जाओगे। आतंकवाद खत्म नहीं होने वाला। आप जितना मर्जी पाकिस्तान आर्मी को पनिश कर लो, पाकिस्तान आर्मी उसको इस्तेमाल कर रही है, लेकिन वो सारा आतंकवाद पाकिस्तान में पाकिस्तान आर्मी का नहीं है। वो आतंकवाद एक सोच है, एक वहाबी सोच है जो पाकिस्तान में फैल गई है। और जितना ये भी हो सकता है कि जितना उनको दबाओगे वो सोच और बढ़ेगी।
नहीं तो और केसी इसी- सिंह यही साहब, हुआ इसका है मतलब इराक में, ये यही हो रहा है, है सीरिया में, आप ठीक कह रहे हैं यही हुआ केसी सिंह अफगानिस्तान साहब, में। केसी सिंह साहब, इसका मतलब ये ये है कि multi-pronged approach पाकिस्तान है। की तरफ देखने से पहले हमें कश्मीर देखना होगा, कश्मीर की सिचुएशन को अपने साथ कहीं जोड़ना होगा, वो भी देखना होगा, वो भी करना होगा। मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच चाहिए। ये समझ रहे हैं यूनिपोलर, डंडा इधर मारो डंडा उधर मारो सारा ठीक हो जाएगा, ये तो वही तो जॉर्ज मैं बुश कह रहा की हूं। पॉलिसी है जो फेल हो चुकी है पिछले 10 साल में। या ये समझ नहीं रहे कि मिलिट्री So we've requested the Minister of State, MJ Akbar, who is here, to provide a few thoughts which come to mind right away based on that statement. However, at the end of the day, we will give you a formal response that is being provided to the United Nations in the General Assembly Hall. With those introductory comments, I'll ask the Minister of State to make his brief remarks. Pakistan at the moment seems to be run by a war machine rather than a government. Pakistan wants dialogue while holding a gun in its hand, a terrorist gun in its hand. Talks and guns don't go together. Our position on a dialogue has been consistent. We have always been ready for a dialogue, but we will not succumb to the blackmail tactics of a government in Islamabad that seems eager to use terrorism and terrorism as policy. We heard the glorification of a terrorist. Burhan Wani is a self-declared commander of the Hizbul Mujahideen. This organization is widely acknowledged as a terrorist group, internationally acknowledged as a terrorist group. It was shocking that a leader of a nation can glorify a self-declared, a self-advertised terrorist at such a forum. This is self-incrimination by the Pakistan Prime Minister. We have just heard a speech full of threat, bluster, and I'm afraid what can only be described as rising immaturity and complete disregard of facts. The only occupation in Jammu and Kashmir which is a part of India is the occupation of a part of Jammu and Kashmir by Pakistan's occupation army. The world also knows that Pakistan has indulged in ethnic cleansing within its own people. Pakistan's consistent use of war and terrorism has been, alas, at the cost of development of the people of Pakistan. The people of Pakistan are paying the price of a malevolent policy. Yeah, just two questions because we have to leave. Yeah, so I'm Abhishek from Times Now. Sir, Nawaz Sharif in his speech also said that Pakistan is ready to go the extra mile, has always gone the extra mile. Which extra mile you think the Pakistani Prime Minister was talking about for peace?
We haven't seen the first mile. Where is the question of the extra mile? Yes, last question. Okay. Indrajit Saluja, the Indian panorama. So the policy of India towards Pakistan has been rather, unclear for the last couple of years. Do you think India is now resolved to take a firm stance against Pakistan, notwithstanding whatever Pakistan has been doing and saying all over? Our Prime Minister's attitude and policy to Pakistan has been consistent from day one. From day one. In the very first invitation that was extended to the SAARC leaders, it was made clear that India was always ready for dialogue with anyone, but not if there was any use of terrorism. You will recall even in the first weeks, the dialogue process was disrupted because India's stand has been unfavoring and changing. You can see in our relationship with other countries which have, where the dialogue process has taken amity and friendship far, very far. It has. It has. Are we ready for Yeah, please, yes. No. Sir, the Pakistani Prime Minister is going to submit a supposed dossier to the United Nations Secretary General, and Nawaz Sharif has made possibly the most massive lobbying effort trying to convert the global community to mediate on Kashmir dispute. Can you talk from India's stance how these countries, the world superpowers, the P5 have reacted to us and what they are saying on India's position? Well, it's a very simple response. I mean, I hope you have heard all the other speeches. Nobody else has referred to this. Yes, last question, yes. Hi sir, this is Ashok from ANI. Sir, your quote, we need your comment on Balochistan because the Balochistan people are protesting in front of UN headquarters. In comment on it. Well, the Balochistan people have reasons for protest against a policy of serious violence against the people, which has a very long history. It is a violence that has included the use of air force, the use of massive armed forces against them. But the best, I think you will have to go and talk to them to find out the full truth. Thank you very much. With that we end this. Thank you. तो एमजे अकबर की प्रतिक्रिया, विदेश राज्य मंत्री, और बहुत साफ तौर पर कहा कि पाकिस्तान डायलॉग भी चाहता है मगर दूसरे हाथ में बंदूक भी थामे रखना चाहता है। वो डायलॉग भी करना चाहता है लेकिन ब्लैकमेल भी करना चाहता है। और बहुत ही ज्यादा आश्चर्य व्यक्त किसी को भी हुआ और खुद सरकार की तरफ से यह है कि जिस तरीके से आतंकवादी की तारीफ की वो हैरान करने वाली है, वह भी वहां के प्रधानमंत्री ने। और संयुक्त राष्ट्र में वार मशीन की तरह पाकिस्तान काम कर रहा है। यानी जिस दिशा में नवाज शरीफ का पूरा भाषण है, भारत ने एक सिरे से उसे खारिज कर दिया है तथ्यों के आधार पर। और जो भाषण दिया गया उसमें जिस तरीके से कश्मीर और कश्मीर का जिक्र बार बार किया गया, उस पर सीधी आपत्ति जताई है भारत सरकार की तरफ से। और डायलॉग और बंदूक नहीं चल सकते एक साथ, इसीलिए कहा गया शर्त का जो जिक्र है उसमें आप आतंकवाद को पूरी तरह खत्म कीजिए तो ही बातचीत हो सकती है। केसी सिंह साहब, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का यह बहुत साफ अब रिएक्शन है। क्या इसके आगे का रास्ता अब भारत के लिए डिप्लोमेसी, कोहेसिव तरीके से हर दिशा में कदम बढ़ाते हुए पाकिस्तान को अलग थलग करना, एक टेररिस्ट स्टेट की तरह उसको दुनिया के सामने लेकर आना, या स्ट्राइक? फिर वही सवाल है किस दिशा में जा सकता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जब इस बात को कहते हैं पाकिस्तान के, और भारत ने एक सिरे से पूरे के पूरे भाषण को खारिज किया है। केसी सिंह साहब। नहीं, वो टेररिज्म पे तो फोकस लाए हैं वापस, सारा टेररिज्म पे फोकस है। और डायलॉग को, बातचीत को ये कहा है कि ये कंडीशन एक ही है। वो कह रहे हैं बिना कंडीशन आप बात करिए, ये तो शुरू से चलता आया है। और ये कह रहे हैं कि नहीं, कंडीशन ये है कि आप आतंकवाद खत्म करिए, उसके बाद बातचीत होगी। तो बातचीत तो खत्म हुई, एक साइड चली गई। ये फोकस सारा टेररिज्म पे आ रहा है। तो हम ये अंदाजा, इससे पहले जब विकास स्वरूप बोले थे उन्होंने भी यही कहा था कि आतंकवाद की पे फोकस था। अब हिंदुस्तान का डिप्लोमेटिकली फोकस इसी पे रहेगा कि पाकिस्तान को आइसोलेट करें। अब एडिशनली मिलिट्री कोई रिप्राइजल हम लेते हैं, छोटा बड़ा,
वो मुद्दा अलग है, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी को जो अप्रोच रहेगी वो यही रहेगी। आरपीएन सिंह साहब, क्या रिएक्शन है आपका? देखिए, हमने पहले भी कहा है और मैं कई बार आपके चैनल पे ये इस बात को और आज बहुत बार दोहरा चुका हूं कि सरकार नेशनल सिक्योरिटी में कोई भी मीनिंगफुल कदम उठाती है तो हम उसके साथ खड़े मिलेंगे, परंतु रेटोरिक, भाषणबाजी, नारेबाजी और नियत, बिल्कुल इसमें अंतर है और अंतर साफ दिखना चाहिए। जो हमारी नियत है पाकिस्तान के खिलाफ, बिल्कुल सोची समझी हुई एक रणनीति होनी चाहिए और जिस तरह उसको साफ तरह से पता चले, नहीं तो जिस तरह हमने 6 महीने में मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स में इस देश पर हमले देखे हैं, वो पठानकोट के बाद जिस तरह हमारा वीक रिस्पांस था, हम नहीं चाहते हैं कि उरी के बाद भी हमारे बाद एक और वीक रिस्पांस पूरे विश्व में हिंदुस्तान का जाए। शहनवाज जी, भारत सरकार की तरफ से आपने सुन लिया, लेकिन अब एक मसला हर कोई आपसे जरूर सुनना चाहेगा। आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के। इसके बाद 2 रास्ते निकल रहे हैं, बिल्कुल दूसरी दिशा में पाकिस्तान है, वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, उनकी आवाज़ वहाँ के टेररिस्टों वाली आवाज़ है जो कहते रहे हैं। अब भारत को पाकिस्तान को लेकर ट्रीटमेंट पहले करना होगा, कश्मीर को साथ लेना होगा, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अलग अलग मोर्चे खोलने होंगे, चाहे वो सार्क हो, चाहे कोई भी फ्रंट हो। स्थिति बनती क्या है अब आपके दृष्टि से? ये सही है। मैं आरपीएन सिंह का वो बयान का स्वागत करता हूं कि वो कह रहे हैं कि हम साथ खड़े हैं। मतलब मेरा अनुरोध है कि बिना परंतु लगाए खड़े रहें तो ज़्यादा अच्छा है। और दूसरी बात है कि हम लोग हर मोर्चे पर पाकिस्तान से, आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जिस तरह बुरहान वानी का जिक्र किया और जिस तरह उसका महिमा मंडन किया, और ये साफ हो गया कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ाने वाला मुल्क है। और हर मोर्चे पर भारत सरकार सबको बातचीत करके सबकी राय लेके, चाहे वो देश के अंदर सबकी राय का ध्यान रखते हुए और मिलिट्री को भी विश्वास में लेके, क्योंकि सब चीज़ों का ध्यान में रख के एक रणनीति पर आगे बढ़ेगी। क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरह की आज बातचीत की है और जिस तरह की भाषा वहाँ बोली है, उसका जवाब भारत की तरफ से उनको मिलेगा। राजदीप, क्या लगता है, डायलॉग के सारे रास्ते बंद? जी, मुझे लगता है जिस तरह से आज नवाज शरीफ ने बात की, एक दोहरापन था उनमें। आप कहते हैं बातचीत के बाद हम बातचीत चाहते हैं, लेकिन दूसरे हाथ में बंदूक है। आप बुरहान वानी की वहां तारीफ करते हैं। सीधी बात है, पाकिस्तान इस समय बातचीत नहीं चाहता है और मुझे नहीं लगता भारत भी पाकिस्तान के साथ इस समय बातचीत कर सकता है। पहला मसला है कश्मीर में जो हिंसा हुई है उस पर काबू लाना। मुझे लगता है पॉलिटिकल सॉल्यूशन एक ना एक दिन आपको लाना ही पड़ेगा, उसकी तरफ बढ़ना पड़ेगा। वो हमारे सामने एक चैलेंज है। नवाज शरीफ एक साफ आज है, शरीफ नहीं थे, बदमाश थे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बात की एक दोहरापन नजर आया और उस दोहरेपन में मुझे नहीं लगता भारत पाकिस्तान के साथ इस समय बातचीत कर सकता है। हमें तो पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करना पड़ेगा। मैं नहीं समझता जंग के द्वारा कुछ सुलझा जा सकता है, लेकिन हां, पाकिस्तान पर लगातार दबाव लगाना पड़ेगा। बलूचिस्तान का मुद्दा हो, पीओके का मुद्दा हो, सब मुद्दे जो हैं उन पर पाकिस्तान पर लगातार आपको दबाव लगाना पड़ेगा। अब बातचीत नहीं हो सकती इस माहौल में। जेडी बख्शी साहब, व्यापार बंद, पानी बंद, उच्चायुक्त की वापसी, सारे संबंध तोड़ दिए जाएं और स्ट्रेटजिकली आगे बढ़ते हुए एक्शन की बात की जाए। जेडी बख्शी साहब, अच्छा देखिए, पानी बंद, उच्चायुक्त की वापसी, सारे संबंध तोड़ दिए जाएं और स्ट्रेटजिकली आगे बढ़ते हुए एक्शन की बात की जाए। जेडी बख्शी साहब, देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमेशा हम जो है इतिहास को जरूर देखें, अपने रीसेंट इतिहास को। बात ऐसी है कि एक मिनट, बात ऐसी है कि पराक्रम के समय भी हमने उच्चायुक्त को वापस बुला लिया था, पानी काटने की धमकी दी थी, बहुत सारी और प्रोग्रेसिव स्टेप्स लिए थे, एयर फ्लाइट्स बंद करी थी और फिर धीरे धीरे फिर दोबारा शुरू कर दी। हमारी फौज अपनी शक्लें बनाती रही 1-1.5 साल और हमने कुछ नहीं किया। प्रॉब्लम यह थी कि हमने फोर्सेस को डिप्लॉय किया, इंप्लॉय नहीं किया। काइनेटिक, जो थोड़ा सा भी अगर हम पूरी फोर्स डिप्लॉय करके कहीं ना कहीं काइनेटिक एक्शन करते तो उसका जो संकेत
काफी मीनिंगफुल होता। हमने पाकिस्तान को बेवजह तूल दी, बेवजह प्रोत्साहन दिया उस वक्त कि भारत डर गया है, कुछ नहीं करेगा। ये कुछ नहीं करेगा जो आश्वासन पाकिस्तान की फौज को मिल सा गया है, आज आपको उसे तोड़ना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि ये सिलसिले में कुछ रोक आए, ये सिलसिले में कुछ ब्रेक लगे, कुछ वक्फा लगे। अगर आप एज यूजुअल डिप्लोमेटिक आइसोलेशन करते रह जाएंगे जो आप 30 साल से कर रहे हैं, तो माफ कीजिए जो संकेत पाकिस्तान को जाएगा खुल सिम सिम है, इनमें दम नहीं कुछ करने का। ये बड़ा गलत संकेत होगा एक महाशक्ति को जो अपने आप को उभरती हुई महाशक्ति समझती है, एक अपने से 1/5 जो साइज का मुल्क है उसको देने का। समय आ गया है कि आप पाकिस्तान में समझें हु कॉल्स द शॉट्स। नवाज शरीफ इज नॉट इन चार्ज, वो मोहरा है, वो कठपुतली है। राहिल शरीफ से आपको डील करना है, उसकी भाषा हम समझते हैं और मैं समझता हूं कि अब देश को उस भाषा में बोलना चाहिए जो राहिल शरीफ को भी समझ आती है। यस, देयर मस्ट बी अ होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच। हम नहीं चाहते केवल आर्मी चीफ साहब और डीजीएमओ साहब को बुलाया जाए जो आप ऑप्टिकल मैसेज देख रहे हैं। वेयर इज द एयरफोर्स चीफ? नहीं, आपका मैसेज बहुत साफ है। अब जनरल राहिल शरीफ को संबोधित अब भारत को करना होगा। आपका मैसेज बहुत साफ है। केसी सिंह साहब, एक आखिरी सवाल। 26 तारीख को सुषमा स्वराज को संयुक्त राष्ट्र में उसी जगह पर बोलना है और महासभा उसके बाद खत्म भी हो जाएगी। 26 तारीख को भारत क्या कहे या कहने से पहले एक्शन ले और उसके बाद कहे, क्या ऐसी सिचुएशन भी बन सकती है? केसी सिंह साहब, वो तो एमजे अकबर ने ऑलरेडी बोल दिया कि एक स्टेटमेंट हम इसका जवाब जो कि आतंकवादी को ये प्रशोभित करते हैं और उनकी प्रेज कर रहे हैं क्योंकि वो अपना डोसियर यूएन सेक्रेटरी जनरल को दे रहे हैं, तो एक तो ये आज ही स्टेटमेंट दे देंगे एमजे अकबर। एक डोसियर जो अटैक का है वो मेरे को लगता है सुषमा स्वराज हो सकता है यूएन सेक्रेटरी जनरल को दें, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स की उल्लंघना हो रही है, हम कह रहे हैं ये टेररिज्म कर रहे हैं हमारे पे। तो वो तू मैं ये पुरानी बातें हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सेक्रेटरी जनरल रख लेंगे, उनके भी 2-3 महीने बचे हैं, तो इसलिए वो दोनों का लेके रख लेंगे। कोई कमीशन इस टाइम यूएन का नहीं सेटअप होने वाला। लेकिन हमें जो बात कई बार हो चुकी है, कश्मीर का मसला हमें ढूंढना है और हमें जल्दी ढूंढना चाहिए, तब तक पाकिस्तान दखल अंदाजी नहीं बंद करेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप लोग लगातार बने रहे। बहुत बहुत शुक्रिया शहनवाज जी, आरपीएन सिंह साहब बहुत बहुत शुक्रिया, राजदीप आप भी रहे, और जीडी बख्शी साहब और केसी सिंह साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके का भाषण नवाज शरीफ के जरिए दिया गया वो अभी संयुक्त राष्ट्र में, वो मैसेज बहुत खतरनाक है। भारत इसे मान रहा है और भारत इस दिशा में कभी आगे नहीं बढ़ सकता है कि अब डायलॉग और बंदूक एक साथ चले, ब्लैकमेल हो, टेररिज्म के साथ पाकिस्तान खड़े रहकर आजादी का जिक्र करे। कश्मीर के मद्देनजर भारत बिल्कुल अपनी संप्रभुता पर इसे हमला मानता है। इंतजार करना होगा आगे सरकार कौन सी रणनीति बनाती है या किस एक्शन का जिक्र करती है। इंतजार सभी को है। फिलहाल इतना ही।